Trapper X, welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much for having me. Let's talk about your journey. So journey was pretty rough in the beginning, but उसके बाद में things went smooth. So अगर बिल्कुल beginning से start करें तो Before that, I want to ask you कि Times Square पे कैसे पहुंच गए थे? If I'm not wrong, you're the only artist to be featured, Indian DJ to be featured on Times Square, New York. Yes. So there are two ways Times Square पे पहुंचने के. पहला तो है कैसी लाइफ होती है डीजे की? बहुत ज़्यादा happening. I don't know what is happening right now. लाइफ मूवी की तरह लगती है. जब आप जहाँ भी जाते हो, you are the main character. जो शो होता है वहाँ पे you get the treatment, the hospitality, the love, the appreciation. मैंने कभी सोचा नहीं था. बहुत सारे DJs ऐसे जिन्होंने कभी कोई म्यूजिक रिलीज नहीं करा है, but still they are getting like paid immensely. उन्होंने कभी खुद का म्यूजिक नहीं करा, just because of the networking they are getting everything they have. ये डीजे को पैसा कितना मिलता है? How much money do DJs make? Crazy amount of money. Just imagine एक आर्टिस्ट है बिल्कुल मेरा हूबहू कॉपी. I would say like he's making around. Usually when I'm around a DJ, you find me on a dance floor. But this time I was on the other side of the table asking questions, understanding what kind of life does a DJ live. Trapper X is one of the fastest growing DJs and upcoming DJs in the country. As a 25-year-old guy making a lot of money and earning a lot of fame. This podcast, we talked about how to produce music, how can one become a DJ, what is the lifestyle of a DJ, how do they make money, and so much more. We had a great time talking about music. We in fact pulled out a song from his library and understood how he made that song. So if you are interested in this kind of thing, you have to watch this episode. I hope you enjoy it. All right, Trapper X, welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much for having me. I want to start with this. First of all, what does Trapper X mean? Trapper X, I don't know. एक cool artist name है. So मैं और मेरा भाई एक बार बैठे थे और it was high time कि हमें artist name decide करना था because we were releasing music. तो रोहित ने मुझे बोला, रोहित, his name is Rohit, तो उसने मुझे बोला कि यार let's have something. तो there's this website called Namelix जिस पे you can write किसी भी कुछ भी word and it'll give you the names, suggested names. Okay. Namelix. So Namelix. Namelix, yes. Okay. It is a AI based website. So हमने वहाँ पे trap लिखा because I was making trap music back then and उससे suggest करा trapper. बट ट्रैपर काफी रैपर की तरह साउंड करता है एंड काफी जेनेरिक टाइप सा लग रहा था. तो मैंने रोहित को बोला कि यार वी हैव टू ऐड समथिंग और रोहित ने बोला कोई अल्फाबेट कर देता है, ट्रैपर ए, ट्रैपर बी वगैरह. बट एक्स आई थिंक इट्स अ कूलेस्ट अल्फाबेट, तो हमने एक्स करा एंड दिस इज हाउ ट्रैपर एक्स केम. But it is really cool. Yes. I really find it cool. Yes. What is trap music? I am मेरी जो vocabulary है और जो knowledge है इस topic के बारे में बहुत कम है. That is why I have you on the show to learn. Okay. So tell me, what is trap music? Okay, so trap is basically the electronic version of hip hop. Like hip hop और trap काफी similar sound करते हैं. They have the same drum patterns. But trap music में एक drop भी आता है. Just like any other electronic music, उसमें एक drop भी होता है. Hip hop music is like verse आता है and then the main line जैसे hook बोलते हैं हम. Trap music में verse आता है, उसके बाद एक build-up एरिया आता है और उसके बाद में एक ड्रॉप आता है जो उसका लीड जो ट्यून होती है वो ड्रॉप के बेस में आती है. तो मेजर आर्टिस्ट है लाइक येलो क्लॉ वगैरह, आजकल सबने सुना है. येलो क्लॉ मेन आर्टिस्ट हुआ. इंडिया में कोई ऐसा डेडिकेटेड ट्रैप प्रोड्यूसर नहीं है बट बाहर बहुत सारे, बाहर डेडिकेटेड फेस्टिवल्स भी होते हैं बाहर तो आई वाज इनटू ट्रैप म्यूजिक और मैं नहीं था. आई यूज्ड टू मेक म्यूजिक फॉर दीज पीपल जो बाहर के थे एंड वो फाइवर पे दे यूज्ड टू हायर मी. साउंड बेटर करके एक वेबसाइट है, दे यूज्ड टू हायर मी देयर और 50-100. थोड़ी सी वॉल्यूम कम करना, थोड़ी सी वॉल्यूम कम करना. Yeah. It's good. Yeah. In the center maybe. In the center. Yeah. Okay. Continue. It's good. Yeah. तो उनके लिए आई यूज टू मेक म्यूजिक और $50 $100 में आई यूज टू मेक म्यूजिक उनके लिए. और तब से मुझे भी इंटरेस्ट आ गया कि ट्रैप म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी बिकॉज पॉप एंड बाकी हाउस म्यूजिक वगैरह एवरीबडी वाज प्रोवाइडिंग बट ट्रैप के इतने सारे गोस्ट प्रोड्यूसर्स नहीं थे. And you were producing this music for people abroad. Yes. Okay. Yes. I used to have a lot of clients उस टाइम पे. Okay. और I was the one जो सबसे चीप सर्विस देता था, सबसे क्वालिटी वर्क देता था. तो $50 it was and $50 मेरे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट थी but I guess how old were you? I was 17. Yes. Wow. I was 17. जब से स्टार्ट कर दिया था फिर I like stretch करा उसे जब तक मैं 22 का हुआ और उसके बाद में फिर फाइनली खुद का म्यूजिक निकाला and got insane response. I remember I was following you. I met you at the gym once. Yes. And then you told me you're producing music. Yes.
मैंने बोला यार बहुत अमेजिंग है. So then you shared your Instagram ID. मैंने घर जाके follow किया. And after I was following you for a few days, I discovered your Spotify profile also. Okay. Right. And now I listen to your music. So I was listening to this music, and before we were starting this podcast, Jalaj and I, we were vibing on it. Okay. We were just playing some music while we were doing the preps. Okay. Very good music. Thank you so much. And for everyone, you should follow Trapper X on Spotify. Thank you and of course on Instagram. So let's talk about your journey. How did it all begin? Okay. So journey was pretty rough in the beginning. बट उसके बाद में थिंग्स वेंट स्मूथ. सो अगर बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करे तो आई वॉज अ जिम ट्रेनर. मेरी कॉलेज टाइम में आई वॉज अ जिम ट्रेनर. उसके बाद में होम ट्यूटर भी रहा. आई यूज टू वर्क एज अ होम ट्यूटर पार्ट टाइम. जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 2nd 3rd क्लास के, उनको मैं ट्यूशन दिया करता था. तो 2 शिफ्ट में जिम की जॉब को डिवाइड कर रखा था, और जो डे टाइम होता था उसमें होम ट्यूटर था. तो मॉर्निंग की जो शिफ्ट होती थी वो 6 से लेकर 10 की होती थी, जिम में होती थी. फिर 10 से 12 आई यूज टू स्लीप, और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक फिर होम ट्यूशन देता था. उनके घर जाके आई यूज टू टीच देम, छोटे बच्चों को. और फिर वापस 5 बजे से जिम. तो इस तरह से थिंग्स वर गोइंग ऑन, एंड 2-3 साल हो गए. सो टू बी ऑनेस्ट इट वाज अ लाइफस्टाइल वैसी हो गई थी कि कुछ ऐसा पता नहीं था, ऐसा कोई एम्बिशन नहीं था कि ये करना है वो करना है. आई हैव सेटल्ड काफ़ी उस वाली एज पे, एंड आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो काफ़ी यंग एज पे माई फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 11. Sorry to hear about that. Yes, so he passed away, and सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए सारे के सारे. तो वी वर हैविंग अ वेरी आई कांट से लैविश लाइफस्टाइल, बट काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल थी. वी वर लिविंग इन मालवीय नगर, गुड कॉलोनी एंड सब कुछ. और सडनली वी केम हियर इन जगतपुरा. रेंट वगैरह का मकान था, सब कुछ था. इट वॉज वेरी टफ, बट ठीक है, मैंने, मेरे भाई ने वर्क करा, सब कुछ करा. बट जिम में आई गॉट प्रमोटेड, मैं मैनेजर बन गया. तो जो जिम की डेस्क होती थी वो मेरे हाथ में आ गई. आई वाज द वन जो म्यूजिक बजाता था वहाँ पे यूट्यूब वगैरह से. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं म्यूजिक जिनके लिए बना रहा था ना, उस म्यूजिक को टेस्ट करता था मैं जिम में, क्योंकि जिम में अच्छे स्पीकर्स लगे थे. तो मैं उन्हें टेस्ट करता, और मुझसे क्लाइंट आके पूछते कि सर इस गाने का नाम बताओ. मुझे लगता है यार ये तो दिस इज वेरी नाइस, मतलब ये लोग पूछ रहे हैं. फिर मैंने एक क्लाइंट हु वाज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने उसे बोला कि यार मैं ऐसे भी काम करता हूँ, ये मेरा पार्ट टाइम काम है म्यूजिक बेचना वगैरह. तो ये सेट कि सर आप खुद के नाम के अंडर रिलीज करो ये. एंड आई टुक हिज एडवाइस, और मैंने निकाला. फर्स्ट ट्रैक ब्लू अप. फर्स्ट ट्रैक वाज BO5, वो नहीं चला था इतना, बट सेकंड ट्रैक लिव लाइक अ लव सॉन्ग उसके 7 दिन बाद ही निकाला था. इट ब्लू अप. वो एक अमेरिकन आर्टिस्ट कीटन मकार्टी है, उनके साथ में कोलैबोरेशन था, एंड इट ब्लू अप. पहला गाना ही. How did you make that track? Like किस तरह से collaborate किया, कहाँ release किया? How did you do that? So जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होता है वो एक DAW यूज करता है. DAW का फॉर्म डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन होता है. इट इज अ सॉफ्टवेयर जिसे हम DAW बोलते हैं म्यूजिकल लैंग्वेज में. वो एक DAW FL स्टूडियो करके, जो मैं खुद यूज करता हूँ म्यूजिक बनाने के लिए, एंड बहुत सारे आते हैं. गैराज बैंड इज अ DAW, एंड प्रो टूल्स वगैरह बहुत सारे आते हैं. तो आई यूज टू मेक FL स्टूडियो पे म्यूजिक, और उसके बाद में आई यूज टू रीच पीपल आउट इंस्टाग्राम वगैरह पे. So there I found this artist called Kaden McCarty. He was doing music as a part-time basis पे, और उसके साथ फिर I collaborated. He liked the work, and उसके बाद में फिर there's a process to release music. जैसे YouTube वगैरह. Tell me about that. Yes. YouTube वगैरह पे you can directly go and upload. Like anybody can make profile, login with Gmail account and upload the music. But जब भी आप Spotify, Apple Music पे जाते हैं तो उधर कोई uploading का option नहीं है. These portals जिन्हें distribution channel बोलते हैं. तो there's this distribution channel DistroKid. वो क्या करता है, वो आपके. Can you come again? What is the distribution channel? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, वो आपके बिहाफ पे. नाम क्या? DistroKid. Yes, DistroKid is the leading distribution channel. और भी काफी सारे CD, Baby, TuneCore वगैरह. मैं पर्सनली DistroKid यूज करता हूँ. तो जब भी आप उनको म्यूजिक दे देता है, वो आपके बिहाफ पे जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है, Spotify, Apple Music, Wink, Saavn, Tidal, Deezer, वो सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं म्यूजिक को. और उधर से जितनी भी रॉयल्टीज आती है, रॉयल्टीज लाइक जो भी अर्निंग होती है, तो रॉयल्टीज का मतलब कि जस्ट इमेजिन आप मेरे एक ट्रैक को सुन रहे हो, और 1 मिलियन बार वो ट्रैक प्ले हो रहा है Spotify पे, तो Spotify gives you $4,000, और वो पूरी रॉयल्टीज की तरह काउंट होती है. DistroKid खुद का 30% लेता है, और बाकी आपको दे देता है. सॉरी, खुद का 30% नहीं देता है, भारत सरकार 30% लेती है, बिकॉज वो पैसा बाहर से आ रहा है. तो 30% आपका स्टेट टैक्स करता है. DistroKid की ईयरली मेंबरशिप होती है, जो कि $13, $20, $35 ऐसे डिवाइडेड होती है, और उसके बाद फिर कटा के आपके पास पैसा आता है. बट स्टिल इंडिया में इतना पैसा जनरेट नहीं हो रहा, बिकॉज पीपल हैव देयर ओन. ऐसे जैसे Spotify ने खुद की गाइडलाइंस निकाल रखी है इंडिया में कि जो प्रीमियम यूजर है केवल उन्हीं का रॉयल्टी काउंट होगा. जैसे जस्ट इमेजिन आप नॉन प्रीमियम यूजर है, आपने Spotify का पैक नहीं ले रखा और मैंने ले रखा है, तो मैं अगर किसी आर्टिस्ट को सुन रहा हूँ ना, तो ही वो स्ट्रीम काउंट होगा रॉयल्टी बेसिस पे. फ्री यूजर्स का नहीं होगा. तो इंडियन में इतने आर्टिस्ट नहीं कमाते हैं, टू बी ऑनेस्ट. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जो मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है वो शोज ही है. शोज हुआ, ब्रांड कोलैबोरेशंस हुआ, बट Spotify से नहीं होता है कुछ. आई डोंट थिंक, लाइक टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं मेरी अर्निंग बताऊँ, आई हैव लाइक मोर देन 50,000 मंथली लिसनर्स. तो अगर मंथली Spotify अर्निंग बताऊँ तो इट इज़ लाइक $50, $100.
This is it. Oh, that is crazy. वही after like some of I my think ये tracks, एक बहुत बड़ा reason है कि lot of producers don't do a lot of work in India. Is that yes, a reason? Yes, this is like the biggest reason कि बहुत सारे producers इसे full time career नहीं बना पाते क्योंकि $100 I don't think कि $100 में anybody can survive. No. और 100 भी तब जब your music are blowing up. Like मेरे कई tracks million जाने वाले तब जाके I'm getting $100. तो जिनके अगर 10,000 20,000 streams है उनका तो कुछ I don't think they earn कुछ भी इसके आसपास. Shows are the major income. Like अगर आप shows में उसे convert कर सकते हैं तो mostly जितने भी music producers होते हैं वो DJ में convert हो जाते हैं because now they can perform. Now they can like have shows, club, campuses वगैरह. So this is the major reason. I'll come to the clubs, Yes. but before and the shows. Yes. But before that, I want to ask you कि Times Square पे कैसे पहुंच गए थे? Yeah, you're Okay, the if I'm not wrong, you're the only artist Yes. to be featured, Yes. Indian DJ to be featured Yes. on Times Square, On Times New York. Square, yes. So there are two ways Times Square पे पहुंचने के. पहला तो है independently, जैसे मैं पहुंचा था, and I'm the only artist, और आज तक भी I'm the only artist. और एक होता है जो आप किसी कंपनी के थ्रू जाते हो. तो just imagine आप बहुत बड़े सिंगर हो. So only artist in which category? Like Yes, the DJ category. I'm the Okay. only DJ जो टाइम स्क्वायर पे फीचर हुआ है. जस्ट Awesome. इमेजिन आप बहुत ए लिस्टर आर्टिस्ट हो जैसे अरिजीत सिंह हो Hmm. और अरिजीत सिंह को स्पॉटिफाई खुद प्रमोट करेगा टाइम स्क्वायर्स पे. True. स्पॉटिफाई पैसे लगाएगा, सारी चीजें करेगा बिकॉज वो भी इंडियन आर्टिस्ट को पुश करना चाहता है. ये तो आप जा रहे हो बड़ी कंपनीज के थ्रू और इंडिपेंडेंट होता है कि वो लोग आपको फीचर कर रहे हैं. तो देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन आकाश आहूजा. आकाश आहूजा वो वहाँ पे रहता है, अमेरिका में रहता है. उनके साथ आई कोलैबोरेटेड and he got some solid connections वहाँ पे and this is how मतलब it was a long process to be honest. एक लाइन में मैं नहीं बता पाऊंगा but it was a very long process. काफ़ी लोग connected थे उससे and मेरे लिए वहाँ पे फीचर होना बड़ी बात नहीं थी. वहाँ पे जयपुर लिखवाना was a big thing. कोई सी सिटी का वो नाम लिखवा रहा है. It was like congratulations Trapper X, make Jaipur proud. Amazing. तो वो चीज़ लिखवाना वॉज अ डील. आर्टिस्ट तो बहुत सारे लोग फीचर होते हैं वहाँ पे बट ऐसे खुद की सिटीज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना ना दैट वाज अ डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग. lot of artists, mostly जितने भी artists होते हैं, they move to Mumbai. Yes. But you've been living in Jaipur. उसका क्या राज है? आई डोंट थिंक इस सब आज की डेट में मैटर करता है कि आप बॉम्बे जाओ या फिर बैंगलोर जाओ. पहले बिल्कुल करता था 100% बिफोर इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया कि आपको बॉम्बे में जाके यू हैव टू मेक सॉलिड कनेक्शंस एंड लोग आपको रीच आउट नहीं करते थे. बट आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है. आई डोंट थिंक कुछ. और पहले एक स्टीरियोटाइप भी था जयपुर को लेकर टू बी ऑनेस्ट कि आप जयपुर से शिट यार वहाँ तो रेगिस्तान होता है. नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है. वी हैव वाटर्स, वी हैव फ्रिज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. बट अब ऐसा कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट. इन 2024 मैं जयपुर में रह के अपने सारे काम संभाल लेता हूँ. नॉट जस्ट ऐसे बॉम्बे बैंगलोर की, इवन अभी वी आर हैविंग टूर्स ऑल्सो. आई बी हैविंग US टूर, आई बी हैविंग दुबई टूर. तो सारे के सारे भी हम यहाँ से जयपुर से कर लेते हैं. हार्डली मेक एनी सेंस. एंड डोंट यू थिंक कि लाइक अगर कोई कोलैबोरेशन वगैरह करना हो उसके लिए इज इट नॉट बेटर टू मूव टू अ बिगर सिटी जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की प्रोफेशन के लिए ज़्यादा बेटर है? लाइक फॉर एग्जांपल मुंबई एज यू सेड. तो doesn't it make any difference for you? मुंबई it makes me very overwhelmed जब भी मैं मुंबई जाता हूँ. and I would suggest कोई भी नया अगर आर्टिस्ट है तो डोंट टेक दिस अप्रोच कि भाई मैं बॉम्बे चल जाता हूँ. बिकॉज नाउ यू जस्ट इमेजिन अगर आप जयपुर में रह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फैमिली, अगर आप रह रहे हैं 10-12 हज़ार में यूल गेट अ फ्लैट, यू कैन सर्वाइव. बॉम्बे में वो इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव 10-12 हज़ार का फ्लैट. तो अगर आप घर से पैसा भी लेंगे वो आपके एक प्रेशर बनाएगा दिमाग पे कि यार मैं घर से पैसे ले रहा हूँ, आर्टिस्ट बनने आया हूँ बट बन नहीं रहा हूँ. यहाँ पे यू हैव फैमिली सपोर्ट. वहाँ पे खाने का, ट्रैवलिंग का, हर चीज़ का एक्सपेंस यू हैव टू बेयर. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कई लोगों के लिए वर्क करा होगा बॉम्बे बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि यू हैव टू मूव योर सिटी. ऑफकोर्स अगर आप किसी लेबल पे साइन हो वहाँ पे, इफ़ यू आर गेटिंग रेगुलर वर्क, अगर जैसे शोज मैं करता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जयपुर से कि कनेक्टिविटी फ्लाइट की नहीं है बिल्कुल भी. तो जस्ट इमेजिन इफ आई हैव टू डू शो इन भुवनेश्वर तो फर्स्ट आई हैव टू फ्लाई टू दिल्ली एंड देन भुवनेश्वर एंड इट वुड टेक मी 11 आवर्स कि पूरा ले ओवर 7 घंटे का दिल्ली पे करके ये सारी चीज़ें. तो अगर मैं बॉम्बे से ले रहा हूँ तो मेरे लिए केवल 45 मिनट 15 मिनट्स की फ्लाइट है. तो दिस इज द ओनली थिंग आई गेस मुझे अफेक्ट करती है. बाकी आई डोंट सी एनी पॉइंट अपनी सिटी छोड़ने. एंड टू बी ऑनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जस्ट इमेजिन वहाँ पे सारी चीज़ें हैं. अंडरस्टैंड कि वहाँ पे जो प्रमोटर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो रहते हैं वहाँ पे. यू कैन मेक ऐसे उनसे अच्छा कनेक्शन मिल के सारी चीज़ें. बट आई थिंक इफ योर वर्क इज गुड ना दिल गोना फाइंड यू. नो मैटर आप इंडिया में किसी भी कोने में दिल गोना फाइंड यू. तो देयर आर माई फ्रेंड्स ये करके मित्रास करके, ये लोग गोरखपुर के थे और आई यूज टू मेक म्यूजिक फॉर देम. आई यूज टू डू मिक्स मास्टर इन लोगों के लिए. इनका एक ट्रैक फटता है अखिया नाम से. दैट ट्रैक हैज मोर देन 100 मिलियन व्यूज, 100 मिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई. एंड आज की डेट में दे आर लाइक आई डोंट नो उनके टॉप ग्लोबल चार्ट्स में ट्रैक्स पड़े हुए हैं. एंड गोरखपुर के थे वो. स्टिल दे लिव इन गोरखपुर. तो आई डोंट सी एनी बैरियर कि आप बॉम्बे के ही होने चाहिए. I'm very happy to know that. I'm very happy to know that क्योंकि a lot of people think that opportunities don't lie in small cities, but
I firmly believe that the next big thing in India is going to happen in a small city. Yes. And it is already happening. It is already taking shape. Yes. And one of the reasons why I also started this podcast is to bring out people from Jaipur also whenever I get a chance. कि उनको मैं ऊपर लेके आऊँ और I can show it to the people around on the internet that small cities like smaller cities, not really a small city Jaipur, but smaller cities like Jaipur compared to the metros is no less. और यहाँ के लोग I think छोटे शहरों के लोगों में जज्बा ज़्यादा है, भूख ज़्यादा है. Correct. I agree. And you are one of the examples for that. Yes. So how is life? Like, what is the life of a DJ? I follow everyone who follows you would know this. You're traveling and then you have like 10 people behind you and then people screaming in the crowd. कैसी life होती है DJ की? बहुत ज़्यादा happening. To be honest, like I don't know what is happening right now. Life movie की तरह लगती है. जब आप जहाँ भी जाते हो, you are the main character. And I'm very happy जो भी हो रहा है. Like जो शो होता है वहाँ पे you get the treatment, the hospitality, the love, the appreciation, insane level पे. मतलब artistic life is mad. To be honest, मैंने कभी सोचा नहीं था. मैं ऐसे गाने चला के नहीं होता बचपन में सोचते थे कि I'll be the main character and I'll go in the security in big cars, fancy hotels, सब कुछ हो रहा है. कुछ भी ऐसा नहीं है जो we are not doing. Lot of people भग रहे हैं गाड़ी के पीछे, फोटो खिंचा रहे हैं, आप सिक्योरिटी में you are rolling, कहीं पे भी जा रहे हो तो venue owners are coming to greet you, to meet you. Everything very sick, very amazing, and the best part is they pay you for it. Yes, they pay. So उससे better और क्या हो सकता है? Yes, you are getting paid. इस सब के लिए तो insane experience. Like बहुत तेज़ life में आया, but insane. Is it? तो कब से, like since when did it take off for you? So this अभी भी it's upward direction only. Yes. I know, but when did it like really take off? So I did a show called El Chiringa. IIT गुवाहाटी का वो फेस्ट होता है. वो मेरी लाइफ का अभी तक का बाय फार सबसे बड़ा फेस्ट है. उसके बाद से थिंग चेंज्ड. Like 50,000 people were there जिनके सामने मैंने परफॉर्म करा. It is the biggest college festival in India. और वहाँ पे I got a chance. अरमान मलिक सेकेंड डे पे थे. फर्स्ट डे पे there was this DJ टुमारोलैंड के आर्टिस्ट थे, वो चार्ल्स बी. एंड थर्ड डे मुझे मिल गया था फाइनल डे. और मेरा सबसे बेहतरीन वहाँ पे सेट हुआ. एंड उसके बाद में सारे ऑर्गेनाइजर्स, लेबल्स एंड प्रोमोटर्स सबके DMs मैसेजेस. इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग, बट दैट वॉज अ टाइम जब सब बदल गया था. मॉर्निंग में मुझे पता था, जब मैंने मोबाइल चेक करा था मुझे मॉर्निंग में पता था कि अब लाइफ डिफरेंट होगी. And how did it, like, what did it feel like? How will I handle it? कुछ nervousness थी, किस कुछ hesitation थी, यार करूँगा कैसे, इतना सारा कैसे संभालूंगा, क्योंकि एकदम से when you get so many things, when you're not prepared for it, how do you handle it? So what did you do? How did you handle it? मैं शो रात को करा और मैं सो गया. और मोबाइल मैंने उठा के सुबह देखा तो there were like thousands of notification, repost और सारी चीज़ें. मैंने वापस मोबाइल बंद कर दिया और सो गया. मैंने बोला नहीं, it can't be real. मैं थोड़ा चिल कर लेता हूँ. उसके बाद मैं I was traveling to airport कैब में जाते हुए और सारे रास्ते ये सोच रहा था कि I should leave this field. I should not pursue it because ये सब अचानक से इतनी तेज़ आ रहा है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है. Should I go to Jaipur back again? या मैं यहीं रुक जाऊँ, क्या करूँ, what should I do? तो मैंने कैब वाले को रुकवाया और मैं थोड़ी देर सांस ली 10-15 मिनट की, यार what should I do? और फिर थोड़ा सा ग्रेटफुल हुआ लाइफ को लेके कि यार ये कुछ तो है, देयर शुड बी अ रीज़न बिहाइंड इट. और उसके बाद में फिर बस आई वेंट टू होम. मैंने घर पे बताया, वीडियोस दिखाई. इट वाज अनरियल. जो मैंने एक्सपीरियंस करा दैट वाज अनरियल. मैं जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक क्राउड था. हाउ ओल्ड वर यू बैक देन? इट वाज लास्ट ईयर ओनली. इट वाज लास्ट ईयर. एक साल में थिंग्स हैव चेंज्ड. हाउ ओल्ड आर यू नाउ? I am 25 right now. You're 25 yes, years old. I'm 25. I am so happy yes that you're doing so well. Yes. Tell me, like, जब शोज में प्ले करते हो तो जो शो में म्यूजिक प्ले करते हो yes. और जो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो, yes. how different are these, or do you produce the same kind of music? थोड़ा सा डिफरेंस है बिकॉज यहाँ पे म्यूजिक जब रिलीज करने की बात आती है तो आई डू इट फॉर मी. जब परफॉर्म करने की बात आती है तो आई डू इट फॉर द क्राउड. तो वहाँ पे जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ तो आई मेक श्योर कि वो म्यूजिक बजाऊँ जिसपे क्राउड वाइब कर सके, ना कि वो म्यूजिक बजाऊँ जिसपे मैं खुद वाइब करता हूँ. बट प्रोडक्शन के टाइम पे आई बिकम वेरी सेल्फिश. सो इट चेंजेस फॉर सिटी टू सिटी. किस टाइप का म्यूजिक प्ले करते हो? यस इट डज. एंड क्राउड टू क्राउड, लाइक एज ऑफ द क्राउड पे भी डिपेंड करता है, किस सिटी में वो डिपेंड करता है. इट डज. सो हाउ, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू पीपल इन द नॉर्थ लिसन टू कंपेयर्ड टू इन द साउथ? यस इट डज. जब मैंने स्टार्टिंग टूरिंग स्टार्ट करी थी तो बैंगलोर, हैदराबाद, दे वर लाइक मोर इनटू कमर्शियल इंग्लिश म्यूजिक. और नॉर्थ में प्रॉपर हिंदी एंड पंजाबी था. बट अब टाइम एक बदला है. अब एक वेव आई है जिसे बोलते हैं बॉलीटेक.
उसमें क्या होता है कि यू टेक बॉलीवुड सॉन्ग्स, ऑल द ओजी सॉन्ग्स, और उन्हें जो मेजर मेन स्ट्रीम टेक्नो ट्रैक्स होते हैं उनके साथ यू मर्ज, और अब वो वेव आई है, वो पूरे इंडिया में अब यूनानिमसली वर्क कर रही है, हर जगह सेम डिमांड करता है, गोवा हो, हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, जयपुर, हर जगह सेम म्यूजिक है। तो आई थिंक अभी इट इज़ द नेक्स्ट ट्रेंड, जो भी अभी नया आर्टिस्ट आ रहा है उसके लिए आई कैन सजेस्ट कि फॉरगेट अबाउट हाउस, टेक्नो म्यूजिक, एवरीथिंग, इफ यू वांट टू सिक्योर योर करियर जस्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बॉलीटेक म्यूजिक एंड उसे रील्स पे डालो। इंस्टाग्राम भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, आई हैव सीन इट। मैंने अभी 5 रिमिक्सेस डाले, 5 के 5 वायरल, कुछ 2 ट्रैक्स तो शायद एक 2.5 मिलियन पे और एक कुछ 1.2 मिलियन पे, एंड उन्हें सेलिब्रिटीज भी रिपोस्ट कर रहे हैं, इमरान हाशमी रिपोस्टेड इट, तमन्ना भाटिया रिपोस्टेड इट। तो आई गेस दिस इज द न्यू वेव। Are you talking about that Kaho Na Kaho wala track? Yes, Kaho Na Kaho, yes. Super track, yes, amazing, sick track. Yes. I loved it. I was vibing at it. Vibing to it. Yes, yeah, yes. बहुत अच्छा था. It went viral, yes, it went viral, और काफी ज्यादा उसने भी सपोर्ट करा। Like उसके बाद में फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट भी ओपन हो गया, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस जो बाहर भी रहते हैं, दे डिमांड ऐसे आर्टिस्ट को जो वायरल आर्टिस्ट होते हैं फ्रॉम द इंडिया। तो उसके बाद में आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरनेशनल क्वेरीज ज्यादा फ्रॉम अमेरिका, लंडन, यूएई, स्पेसिफिकली यूएई वाज द मेन मार्केट फॉर मी। तो यस, बॉलीटेक इज द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड सब यंग आर्टिस्ट को वहीं फोकस करना चाहिए जो एस्टेब्लिश है, दे ऑलरेडी हैविंग रिलेशनशिप, राइट? लाइक वी हैव रिलेशनशिप, अभी हम वी कैन पिक अप शो जहाँ भी हम चाहे, बट जो नया बंदा है उसे अगर इधर पोजीशन चाहिए तो ही शुड बी प्रोड्यूसिंग बॉलीटेक म्यूजिक, द मिक्सचर ऑफ बॉलीवुड एंड टेक्नो। So do you work with an artist management company or do you do it solo? How do you do? No, I have team now. अभी मैंने recently have signed a team 4 months back. उससे पहले I used to do it by myself only. सब कुछ मैं करता था, from booking shows, from accounting, making music, and even I have academy as well. वहाँ पे भी बच्चे पढ़ाना, I have a music production academy यहाँ पे जयपुर में, वहाँ पे भी बच्चों को What is it called? Trap Cult it is, and we'll be putting एक और branch उसके दिल्ली में very soon next year. और सारे काम मेरे थ्रू होते थे, बट आई हैव अ ह्यूज टीम नाउ वर्किंग विद मी। क्रिएटिव कीड़ा नाम है उनका, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, एंड सारे के सारे अब आई हैव एवरीथिंग, लाइक आई हैव 2 मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, आर्टिस्ट मैनेजर, so they take care of everything. Creative Kida, do they manage other artists also? Yes, they do उनके like, और भी बड़े सारे नाम से जो भी A-lister आर्टिस्ट है, they'll manage a lot of artists, more than 30 artists. और सबसे आई गेस the only DJ I am जिसे वो अभी ऑफिशियली साइन कर रहा है, they of course manage ऑलमोस्ट जितने भी हम आर्टिस्ट जानते हैं उन्हें कॉलेज कैंपसेस में उन्हें मैनेज करा, सब करा, बट एक्सक्लूसिवली आई एम द ओनली डीजे जो उधर साइंड है। तो आई हैव माई मैनेजर, वेरी नाइस गाय, नोएल, वो सब कुछ देखता है, भले वो सारी बुकिंग्स हो, सारी अकाउंटिंग पार्ट हो, सब कुछ दे टिक है। अब द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज परफॉर्म एंड मेक म्यूजिक, दैट्स इट। That is good because it helps you manage and focus on your work that much more better. अच्छा, एक बात बताओ कि इतनी हैपनिंग लाइफ दिखती है इंटरनेट पे, and you are playing music all throughout the night, weekends पे सारा टाइम प्ले कर रहे होते हो, doesn't it, and then so much of travel, doesn't it get hectic for you? Like is it hectic or how's it? Nah, it does. आधी रात को फ्लाइट लेते हैं हम, मतलब to be honest I take more than 20 flights a month. ये एवरेज है, कभी इससे ज़्यादा भी हो जाती है, तो बहुत हेक्टिक है एयरपोर्ट्स पे जाना, और मोस्टली फ्लाइट रात की अर्ली मॉर्निंग की होती है, क्योंकि हमें जल्दी से सिटी से निकलना होता है, बिकॉज नेक्स्ट दिन दूसरा शो लाइन अप है, तो हमें वहाँ पे दूसरी सिटी में जल्दी से पहुँचना, एंड वी हैव टू स्लीप, और फिर वापस दूसरा शो परफॉर्म करना है। जैसे आज की बात है, आफ्टर फिनिशिंग दिस थिंग आई हैव टू गो बैक, डू द पैकिंग, एंड अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है दुबई की, तो इस तरह से इट इज़ वेरी हेक्टिक शोज के बाद में। Where are you coming from today? इंदौर। You're coming from Indore. So Indore mein, so today is like 7th of August. What were you performing? Where were you performing? So I was performing at Essentia. It was massive show, sold out show. Essentia, it is the only 5-star hotel in Indore. So I was performing there. एक friendship bash था बहुत बड़ा, more than like all the big shots, all the big companies, सबने मिलके वो event कराया था. I was a headliner of that event. और 4 और artists थे जिन्होंने open करा. So it was a massive show. उसके बाद में I'll be performing tomorrow in Dubai. We have 2 shows lined up. उसके बाद में I'll come back, 2 दिन का break, फिर I'll be traveling to Bombay. फिर बॉम्बे से डायरेक्ट भुवनेश्वर से डायरेक्ट हैदराबाद। That's a lot of travel, lot of flights, lot of people, like और ये अच्छा है, like I used to make stories पहले एयरपोर्ट की कि वाह I'm at the airport, but I don't think कि बिल्कुल मन नहीं करता मोबाइल निकालने का भी, but yes I love my job, and जो भी ये सब कुछ चल रहा है, I think keeping yourself busy is the best thing you can do for your mind. जब भी मैं खाली बैठता हूँ ना, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि यार चलो ऑफ सीजन है, आई एम दैट पर्सन जो कि खाली नहीं बैठ सकता। आई लव वर्किंग, मैं हमेशा काम करता रहता हूँ, और आई थिंक ये मेरी मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट लाया। सो पहले मेंटल हेल्थ वाज लाइक नॉट दैट गुड जितनी अभी है,
पहले इट वाज नॉट दैट स्टेबल बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स और थी, बट अब आई थिंक देयर इज स्टेबिलिटी, देयर इज पीस, आई फाउंड पीस इन माय वर्क, so अब it is very nice. That's the most important thing. How many days a week do you spend time producing music versus playing at shows? Playing at shows, I guess ज़्यादा time होता है, like I almost spend, I don't know, more than 10-12 days performing. और उसके बाद में जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, इट इज़ नॉट कि डेडिकेटेड टाइम नहीं होता कि आज मैं बैठ के प्रोड्यूस करूंगा. वो कभी कभी एयरपोर्ट पे आ जाता है आइडिया, यू आर जस्ट सिटिंग लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू सम अदर थिंग, और अचानक से आइडिया आ गया यार आई शुड डू दिस, तो मैं लैपटॉप निकाला और वहाँ पे आई स्टार्टेड डूइंग. और फिर भले वो फ्लाइट्स के अंदर हो, दैट इज द मोस्ट पीसफुल टाइम जो मुझे लगता है कि बिल्कुल सब शांति है और रात को यू आर ट्रैवलिंग इन अ फ्लाइट, अच्छा खासा शो करा आपने, यू आर वेरी काम, और अब आप प्रोड्यूस करो. तो आई यूजुअली मेक म्यूजिक ट्रैवलिंग के साथ. इंस्पिरेशन कैसे आती है म्यूजिक प्रोड्यूस करने की? आई डोंट like there are so many songs that come out coming from somebody who just listens to music and enjoys it. I don't know about anything about producing music. So what are the steps, like how do you produce music? किस तरह से करते हो कि यार ये वाली बीट आएगी, ये बाद में आएगी, like how do you do it? Okay, so मैं बता देता हूँ, like मैं म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो आई नो एवरी टेक्निकलिटी पॉसिबल जो एक म्यूजिक प्रोडक्शन में होती है, भले वो एडवांस लेवल की मिक्सिंग मास्टरिंग हो सब हो, बट वो सब बात का पार्ट है. फर्स्ट होता है आइडिया आना एक फर्स्ट. तो जस्ट इमेजिन इफ आई एम लिसनिंग टू सम म्यूजिक, मैं ड्रेक को सुन रहा हूँ, अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए एंड आई शुड ऑल्सो प्रोड्यूस समथिंग. अब मैं टाइम नहीं लगाता, ऑन द स्पॉट जब सुना मैंने निकाला लैपटॉप, आई स्टार्ट, मतलब उसका एक ड्राफ्ट बना देता हूँ और फिर उसे कंप्लीट पूरा जो उसका प्रोसेस है, देयर इज प्रोसेस, पहले प्रोडक्शन होता है, फिर मिक्स एंड मास्टर होता है. सो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इज लाइक कि जस्ट इमेजिन प्रोडक्शन है कि कार का पार्ट्स असेंबल करना, मिक्सिंग है उन्हें अटैच करना, और मास्टरिंग का मतलब है उसे फाइनल पॉलिश करके शोरूम पे पहुंचाना. तो म्यूजिक भी ऐसे ही बनता है, पहले वी टेक एलिमेंट्स अलग अलग, उन्हें स्ट्रक्चर करते हैं, उन्हें मिक्स करता है, मतलब रिफाइन करता है, बिल्कुल एनहांस करता है, और फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए मास्टरिंग करते हैं, प्रॉपर उनकी लेवलिंग वगैरह सब कुछ होती है. So what kind of a software does a person use to produce music at a very basic level? कि अगर some young guy or girl who's passionate about producing music, उसको produce करना है, so how can they start producing it? Okay, so जो अगर iOS में है, जो Apple products use करता है, उसमें पहले ही एक एप्लीकेशन आती है, इसे GarageBand बोलता है, that is free of cost. वो आराम से उस पर म्यूजिक बना सकता है, दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन म्यूजिक उस पर बन सकता है. अगर आप विंडो यूजर है तो जस्ट डाउनलोड FL Studio, जिसपे मैं प्रोड्यूस करता हूँ. ऑफकोर्स उसका प्रीमियम के लिए आपको यू हैव टू पे, बट ट्रायल वर्जन में सब कुछ अवेलेबल है. ट्रायल वर्जन में यू कांट सेव द प्रोजेक्ट एंड उसके अलावा आप सब कर सकते हैं. Can you repeat the name? FL Studio. FL Studio, ये इमेज लाइन करके एक कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर है, इसका फुल फॉर्म है Fruity Loops. Okay. FL Studio, तो उस पे आप म्यूजिक बनाइए, और सारे के सारे सॉफ्टवेयर मेक द सेम काइंड ऑफ म्यूजिक. ये केवल एक मिथ है कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा और वो बुरा. अगर आपको म्यूजिक बनाना आता है तो सबके सेम आउटपुट है. आई यूज एवरी सॉफ्टवेयर, लाइक जितने अभी मार्केट में अवेलेबल है, आई नो हाउ टू यूज देम ऑल. और इसमें like when you're using the software, so how do you select यार ये इंस्ट्रूमेंट है एंड देन ये बीट्स हैं, ये किस तरह से होता है? गिव मी लाइक, मैं बिल्कुल मेरे को रूडिमेंटरी लेवल पे भी नहीं पता, सो एक्सप्लेन इट टू मी. ओके सो एक सॉन्ग में दो चीजें सबसे एसेंशियल होती है. फर्स्ट उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, जो पीछे सारी मेलोडीज चल रही है, ड्रम्स चल रहे हैं, एंड सेकंड आर वोकल्स. तो हम केवल इंस्ट्रूमेंट पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन केवल वही बनाना होता है. वोकल्स वाली चीज है रिकॉर्डिंग. एक क्रेजी आइडिया दिमाग में आया. यस, why don't we play some music? Yes. Your music. Yes. And then you tell me कि इसके अंदर पहले मैंने ये डाला, ये डाला, ये डाला. Okay. 100%. Can we pause it and then we get the stuff and do it? Yes. A few moments later. Okay, so I went on Spotify. Just type Trapper X Blurry. Trapper X Blurry. Okay. Trapper X Blurry. There you go. Okay. तो अभी I'm playing the song. Yes. Now you tell me कि क्या चीज पहले करी, फिर क्या चीज ऐड करी, क्या चीज ऐड करी. Okay. Okay. So let's play this. I don't wanna be famous. I just wanna get famous. Give me the paper. I could be nameless. I wanna live off. Okay. So मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इस ट्रैक के बारे में. इसमें दो और आर्टिस्ट है, जस्टिन डायमंड एंड टेओजी, like TAOG. That's how you pronounce it, TAOG. So दोनों के दोनों इंटरनेशनल आर्टिस्ट है. एंड फर्स्ट जो चीज़ हुई थी, वो स्टार्टिंग एक मेलोडी आती है, तो वो मेलोडी सिंथेसाइजर्स होते हैं, ये रियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, सारे आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी आते हैं. पहले वो मेलोडी यू मेक, उसके बाद में यू मेक ड्रम पैटर्न्स.
तो जैसे हम एक ड्रमर किक बजाते, मतलब आपने देखा होगा ड्रमर के हाथ में 2 स्टिक होती है और एक पैड से वो किक कर रहा होता है, जो पैड से कर रहा होता है उसे किक बोलता है म्यूजिकल लैंग्वेज में, और जो हाथ से कर रहा होता है वो स्नेयर, सिम्बल्स, परकशन कुछ भी हो सकता है। तो पहले आप उसका एक पैटर्न बनाते हो जो आपकी मेलोडी के साथ मैच हो रहा होता है, और उसके बाद में आप आगे एक बार प्ले करो। For my greatness, yeah, I made it. That's all it's taking. For me to live happy, I swear to God, pay me. Cause I've been a champ like Brady, yeah. Find me ripping and soaring. That D12 and it's growing. I speed past when I throw it. Living my dream now when I'm growing. Got me rather scared. At the damn pace that I'm going, shit is getting real, bro. अब ये बिल्डअप सेक्शन आएगा। आगे जो आएगा बिल्डअप सेक्शन कैसे बनता है कि एक स्नेयर होती है। बिल्डअप सेक्शन क्या होता है? बिल्डअप ऐसा होता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में सुना होगा, टक 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 टक, फिर स्पीड वो होती रहती है, वो इसे बिल्डअप सेक्शन बोलता है। तो एक स्नेयर पे बनता है, पहले आप स्नेयर लेते हो, पहले 4 बज रही है, फिर 8, फिर 16 और फिर 32, और उसके बाद में फिर एक ड्रॉप आता है। सेम इसमें भी होगा। बिल्डिंग अप My face is blurry, my heart screaming, you get hurt, you disturb me. You don't want to smoke. really cool. Okay, tell me about it. So ये बिल्डअप आया, बिल्डअप का एक थोड़ा सा एक बार हम फ्री रखते हैं। एक बार का मतलब होता है थोड़ा सा लाइक 4-5 सेकंड का सेक्शन फ्री रखता है, जिसमें कुछ भी बोल सकते हैं। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में बोलता है लाइक 1 2 3 लेट्स गो, वो हम फ्री रखते हैं और उसके बाद में फिर ड्रॉप आता है। अब ड्रॉप शुड बी हैवियर देन द एंटायर ट्रैक, राइट, बिकॉज वो एक मेन हाईलाइट है ट्रैक का, और उसमें फिर काफी सारी चीजें अगेन चल रही है, उसमें बेस चल रहा है, काफी ज्यादा बूमी बेस आ रहा है और सब आ रहा है। तो अगेन सारी चीजें एलिमेंट्स को एक साथ कनेक्ट करके स्ट्रक्चर करके दिस इज हाउ वी मेक म्यूजिक, एंड ये सब सॉफ्टवेयर पे होता है। Awesome. सब। अच्छा, tell me one thing, like क्या एक तरह के म्यूजिकल एक बॉलीटेक के बारे में बात करी कि उसकी एक वेव चल रही है, राइट? सो व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, तो इस म्यूजिक में भी कुछ सिमिलर टाइप के सॉन्ग, इस जॉनर में भी सिमिलर टाइप के सॉन्ग्स होते होंगे, राइट? सो पर्टिकुलर जॉनर के अंदर जब आप म्यूजिक बना रहे होते हो तो क्या उसकी भी वेव होती है कि ये सिमिलर सॉन्ग है, आजकल ये इसी टाइप के जॉनर के अंदर ये गाने चल रहे हैं, तो हाउ डज दैट लाइक? ओके, सो हर जॉनर के खुद का एक स्टाइल होता है, जिसे हम डिफरेंशिएट करते हैं बीपीएम पे, बीट पर मिनट। तो जितने भी ट्रैप सॉन्ग होते हैं वो 140 से लेके 160 बीपीएम पे होते हैं। तो अगर ट्रैक उतने बीपीएम पे बज रहा है तो वी नो कि इट इज हिप हॉप या ट्रैप। और अगर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की बात करें, जैसे हाउस एंड टेक्नो, इनकी भी एक बीपीएम रेंज होती है, जैसे वो 110 से लेके 128 तक हो सकता है। तो जैसे ट्रैक उस बीपीएम में आता है, हम समझ जाते हैं कि दिस इज द सेम, लाइक वो हाउस म्यूजिक है या टेक्नो है, और फिर उसके और काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करता है। बट बहुत इट इज अ टेक्निकल पार्ट। द मेन थिंग इज कि सुनने में म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, दिस इज इट। मैं इतना समझता हूँ, मैं ना इतना टेक्निकलिटीज में जाता, ऑल्दो आई एम लाइक आई डोंट नो, पहले से मैं बिल्कुल इस चीज में प्रैक्टिस हूँ सब, इसलिए मैं टेक्निकलिटीज अपने आप कर लेता हूँ सबकॉन्शियसली, बट मैं किसी को नहीं बोलता म्यूजिक शुड बी गुड एंड दिस इज इट, शुड बी फ्रॉम द हार्ट। आप बिल्कुल ऐसे मत करो कि आप रात भर बैठे हो, यू आर डूइंग ऑल द टेक्निकल स्टफ। नहीं, अगर जो म्यूजिक अच्छा है ना, वो हमें रिकॉर्ड करते टाइम पता लग जाता है। जब हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हमें तब पता है कि ये गाना फटेगा। ऐसा नहीं होता कि हम वी वेट, हमें रिकॉर्ड करा, हमें पता है नहीं फटेगा, नहीं फटेगा। आज तक बाय फार नहीं हुआ। और मुझे ये कहो ना कहो और आज की रात जितने भी अभी फटे इंस्टाग्राम पे, मुझे अपलोड करते टाइम पता था फटेंगे। अपलोड करते टाइम, द मोमेंट आई अपलोडेड, मुझे पता था फटेंगे। बिफोर कमिंग फर्स्ट लाइक आने से पहले आई न्यू। तो आपको खुद को पता होता है। एंड कुछ आर्टिस्ट क्या खुद से भी ऐसे लड़ते रहते हैं कि नहीं, उन्हें पता है कि सॉन्ग इज नॉट गुड, बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एरोगेंस दे अपलोड इट, एंड फिर ऑफ कोर्स ये एक डाउनफॉल है ही आपका। मेरे पास आई हैव मोर देन 500 प्रोजेक्ट सेव मेरे लैपटॉप में जो कभी रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट वो लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे। एंड इवेंचुअली यू आर डूइंग इट फॉर पीपल। आप कितने भी सेल्फिश हो, लोग हैं जो जज करते हैं म्यूजिक को। आप खुद की मर्जी से डालते रहो, बट इफ इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड। हाउ डिड यू learn about these technicalities? Did you go to the best and the most amazing school of the world? Actually, is YouTube. Yes, free for all, and it has the best of the teachers, and available whenever you want. Yes, amazing. YouTube was, and I would suggest एक और चीज, किसी भी स्टूडेंट को अगर म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है, इट इज एक्सपेंसिव कोर्स, राइट? हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता इस कोर्स को। जस्ट ओपन यूट्यूब, सर्च बिजी वर्क्स बीट
एंड वो एक YouTube चैनल है, इस पे A to Z म्यूजिक प्रोडक्शन का सब दे रखा है. Busy Works Beat. Yes. Beat. Busy Works Beat. Okay. Busy Yeah. Works Beat. Yes. Okay, guys. दिस इज फॉर द पीपल जो इंग्लिश में सीखना चाहते हैं. एंड फिर एक है दृष्टिकोण प्रोडक्शन, वो हिंदी में म्यूजिक प्रोडक्शन सिखा रहे हैं. तो दीज आर द फ्री चैनल्स, आराम से जाओ. दे हैव एवरीथिंग जितना म्यूजिक प्रोडक्शन में आपको नीडेड है. उन्होंने UI से लेके बेसिक से लेके एडवांस सब कुछ समझा रखा है वहाँ पे. Awesome. That is really Yes. that is going to be very helpful for everyone and anyone watching this Yes. if you are into this kind of thing. अभी मुद्दे की बात पे आते हैं. ये DJ को पैसा कितना मिलता है? How much money do DJs make? Tell me. Crazy amount of money, to be honest. Crazy, like not from the day one, of course. Day one में हो सकता है. So I'll break it here. Tell me कि एक starting जिसको एक like when you were a starter. Yes. When you were doing it alone. तो एक कॉलेज की पार्टी में आ गए या फिर कहीं किसी प्राइवेट फंक्शन में चले गए. देन यू थोड़ा सा बड़ा नाम हुआ एंड देन नाउ यू आर विद अ टीम एंड देन ऑफ कोर्स फिर उसके बाद आप ये इनके लेवल पे चले जाते हो. यू नो इंडिया में न्यूक्लियर वगैरह है एंड देन यू गो अब्रॉड एंड प्रोजेक्ट. तो किस स्टेज पे अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा कमाता है? मैं बताता हूँ. तो जैसे ही वो स्टार्ट करा है, मोस्ट ऑफ द टाइम डीजे FOCs में करता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट शो करता है. कुछ भी पैसा नहीं मिलता है इनिशियली. टू बी ऑनेस्ट, कुछ भी पैसा नहीं है इनिशियली. अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम द फर्स्ट डे पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे. वो लोग चाह रहे हैं कि आप उनके लिए बिजनेस लेके आओ. जैसे आप अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, सब बुलाओ, तब जाके वो आपको स्टेज देंगे. फिर सेकंड आता है कि आपके नाम से लोग आ रहे हैं. तो इवेंचुअली इफ यू आर केपेबल टू पुल अप 100 पीपल जो 1000 रुपए देके आपको देखने के लिए आ रहे हैं, तो इवेंचुअली आपके जो प्राइसेस, आपकी फीस है, वो 1 लाख रुपए हो जाएगी फॉर पर शो. दिस इज ह्यूज. लाइक अ पर्सन हु इज डूइंग 10-12 शोज, 12 लाख रुपए महीने के कमाना. फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हो, जब आप थोड़े से मेन स्ट्रीम हो जाते हो, इंडिया लेवल पे आपके नाम काउंट हो रहा है, तो यू कैन गो अप टू लाइक 15-20 लाख रुपीज अ शो. यस, कहीं ना कहीं मतलब बेस पे अगर रहे तो 2.5-3 लाख रुपीज अ शो यू चार्ज बड़े क्लब्स में, बड़े वेन्यूज पे फॉर अ शो. और वो 45 मिनट से लेके 2 घंटे की परफॉर्मेंस होती है. दिस इज इट. एंड डू क्लब्स पे यू मोर? डू प्राइवेट इवेंट्स पे यू मोर? लाइक हु पेज यू? ओके, सबसे ज्यादा है प्राइवेट इवेंट्स एंड वेडिंग्स में, बिकॉज इंडियंस दिल खोल के उड़ाते हैं पैसा. इंडियंस वेडिंग्स में कोई नेगोशिएशन नहीं करते. जस्ट इमेजिन आपने प्राइस बोल दी, दिल गाना लॉक यू, अगर उन्हें लॉक करना है तो. फिर उसके बाद में क्लब्स, फिर उसके बाद में कॉलेजेस, एंड सबसे लीस्ट फेस्टिवल पे करते हैं. फेस्टिवल, यस, म्यूजिक फेस्टिवल सबसे कम पैसा देते हैं इंडियंस को, अगर वो इंडिया में हो रहा है, बिकॉज दे वुड प्रेफर अदर पेइंग इंटरनेशनल एक्ट्स, और इंडियन से वो ओपन करवाते हैं. तो दिस इज अ अगली ट्रुथ, बट दिस इज इट. बट सबसे ज्यादा पैसा अगर आपको कॉन्स्टेंटली करना है तो क्लब्स आर द वे, बिकॉज क्लब्स हर सैटरडे शोज कर रहे हैं. कॉलेज साल में एक बार करेगा, शादी लाइफ में एक बार होगी, मगर क्लब तो हर सैटरडे करेगा. तो वो एक बहुत ज्यादा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है. और तो इसका मतलब नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस डू प्ले अ बिग रोल इन दिस, राइट? बिग रोल. लाइक टू बी ऑनेस्ट, आपको बहुत सारे डीजेस ऐसे, आई कांट से नेम, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू एंड अप इन एनी कंट्रोवर्सी, एब्सोल्युटली, बट बहुत सारे डीजेस ऐसे जिन्होंने कभी कोई म्यूजिक रिलीज नहीं करा है, कभी कुछ भी, दे हैवंट पुट एनीथिंग आउट म्यूजिकली, but still they are getting like paid immensely. They are getting shows, they are setting up tours. उन्होंने कभी खुद का म्यूजिक नहीं करा. just because of the networking they are getting everything they have. just networking, just because they know the right people. and इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, to be honest. networking is an art, right? वो अगर आप वो उसमें अच्छे हो तो I don't think you should be that talented. आप आज की डेट में अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, अगर आपको पैसा कमाना है, छापना है, 2 चीज़ों पे ध्यान रखो, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग. दिस इज इट. Nobody asks me, आज मेरे पास जब भी शो आता है कि आपके Spotify नंबर कितना है, nobody does it. वो ये पूछते हैं कि आपके Instagram नंबर कितना है, आप किसके रेफरेंस से आ रहे हो. These are the things. अभी कॉल पे हो जाते हैं शोज बुक. पहले you used to send ऐसे पूरा एक रिज्यूमे जैसे हम जॉब के लिए लेके जाते हैं, वैसे आर्टिस्ट में EPK होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट. तो वो आपको ले जाना पड़ता है कि सर मैंने यहाँ परफॉर्म कर रखा है, ये मेरी आफ्टर मूवीज है, ट्रैक्स है. Nobody asked it. It's been 1 year, आज तक कभी किसी वेन्यू ने पूछा कि ट्रैपर एक्स सेंड मी और EPK. बिकॉज अब आप एक ब्रांड की तरह बन चुके हो. पीपल नो यू बाय नेम, you have good connections, and अब you have the capacity. Very cool name. Yes, Trapper X, yes. And now आपके नाम से क्लब्स भर रहे, तो they also want to book you. तो अभी things are very different, but starting में तो it was very hectic. कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा शोज होते हैं? अभी for now Bangalore में सबसे ज्यादा audience. Okay, yes, so you have a good audience in Bangalore right now. Almost every city now. अब इस पॉइंट पे हूँ मैं कि जहाँ भी हम शोज कर रहे हो सारे सोल्ड आउट है. कोई भी हमने फेल शो नहीं करा है, कोई भी लॉस वाले शोज नहीं उठाए. हमें पता है हमारी ऑडियंस कहाँ पे. ऑफ कोर्स टियर 3 सिटीज वी आर नॉट डूइंग अभी, बट टियर 2 टियर 1 में जो भी हम शोज कर रहे हैं, बाय फार लास्ट 50 शोज, एवरी शो वाज सोल्ड आउट. इवन जो अभी कल शो होगा दुबई में, इट इज सोल्ड आउट ऑलरेडी. We have sold out every table, we have sold out all the entries, and it is locked up. So when you are performing in these shows, do you get a cut from the earning of the show,
or do they just pay you a lump sum? ना, it depends कि क्या डील पे यू आर वर्किंग. जैसे अभी आई एम नॉट टेकिंग कट, बट जस्ट इमेजिन कल को शो टिकटिंग बेसिस पे हो रहा है कि मेरे नाम से टिकट्स आ रहे हैं, लाइक 500 रुपीज दो आप, और ट्रैपर एक्स की बस एंट्री है, कुछ भी आपको उसमें नहीं मिलेगा, तो ऑफकोर्स आई गोना टेक कट. बिकॉज जस्ट इमेजिन इफ आई एम चार्जिंग आई डोंट नो 10 रुपीज फ्रॉम अ क्लब, और अगर टिकट देके वो 100 रुपए बना रहे हैं, तो आई वुड रादर हैव 15% ऑफ 100 रुपीज, राइट? रादर टेकिंग ऐसे लमसम उनसे 10 रुपए ले लूं एंड दे आर मेकिंग 100, 150, 200. Lot of DJs do that. Lot of artists also does it. कि वो टिकटिंग परसेंटेज पे भी रहता है और लमसम भी लेते हैं जस्ट फॉर द बैकअप, कि इन केस अगर टिकट सेल नहीं होते तो वो खुद की प्राइस सिक्योर रखती है. और अच्छा, एक और मेरा डाउट था म्यूजिक में, लाइक आई लव लिसनिंग टू दीज आर्टिस्ट लाइक बेन बोमर एंड मोनोलिंक एंड कैमल फैट, और ये मेरे प्लेलिस्ट के अंदर पड़े रहते हैं. सो ये जो म्यूजिक बनाते हैं तो इनमें EDM is an umbrella. Yes. और इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक के अंदर टेक्नो and what else? Yes. House. Yes. And then trap. तो ये सारे EDM के अंदर आते हैं. Yes. EDM is a mother genre. फिर उसके नीचे सब जॉनर्स बनते हैं, जैसे हाउस हुआ. अब हाउस में भी सब जॉनर्स बनते हैं, जैसे डीप हाउस है, बेस हाउस है, फ्यूचर हाउस, ट्रॉपिकल हाउस. इसी तरह टेक्नो में भी बनता है, मेलोडिक टेक्नो, हार्डकोर टेक्नो, अंडरग्राउंड. तो बहुत सारे जॉनर्स ये तो बढ़ता जाता है. Okay, I'll just enjoy the music that I listen to and won't go in the details of it. Correct. Achha, so now tell me, now this is the part where I make you uncomfortable. So how much money does Trapper X make? Because I want to know ke when you get to a level where you are and somebody who's watching this who's aspiring to become a DJ, तो उसको एक गोल मिल जाए, so maybe give like a ballpark figure or something. Okay, मैं मेरे पे तो खैर नहीं बोल सकता हूँ, like income tax का I don't I get it. They can rate me, but just imagine एक artist है बिल्कुल मेरा हूबहू copy, तो I would say like he's making around 1 CR annually. Yes, this is the average figure. इससे ऊपर भी जा सकता है, कहीं ऊपर भी, but अगर average ले तो he is making 1 CR annually. Somebody like you who's doing shows as many as you are doing and producing music as much as you are may make 1 CR. Yes. यार गलत काम कर रहे हैं हम यहाँ पर बैठ के, like what are we doing? I think I'm in the wrong profession. I have to become a DJ now. मैं भी सीखूं किस तरह से music play करते हैं. What was your first pay as a DJ? As a DJ it was 3,000 rupees. Yes. कहाँ पे थी याद है? Yes, I remember. ये जयपुर में एक क्लब है डांस एंड डाइन करके, I don't know अब वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता. 9 सेक्टर में इट यूज्ड टू, मतलब वो मालवीय नगर 9 सेक्टर डांस एंड डाइन करके एक क्लब था. वहाँ पे आई गॉट अ न्यू ईयर पार्टी जिधर 6 घंटे बजाने के मुझे 3,000 रुपए मिले. How old were you? I was very young. I was 19. You're still very young, but how you were younger than this? Very young, 18, 19. 18-19. Yes, that was the first show. मैं लैपटॉप लेके गया था, proper virtual DJ. Virtual DJ. Yes. 3,000 rupees for 6 hour show. When I was in college and also in school, so I also was fond of playing music. Yes. I had virtual DJ. Yes. और मैं भी अपने लैपटॉप पे इसी तरह से music play करता था. And then from there on, you saw what you saw later on. But fun. I mean, from there to how the life took a turn. Yes. And you know it propelled you to where you are right now, which is very heartening and amazing to see. Acha, I'll dig deeper into this financial aspect of becoming an artist. So एक DJ के major source of income is definitely the shows that you do. What other sources of income are there? Okay, बहुत सारे हैं. जैसे अगर आप डीजे एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है तो रॉयल्टीज आपका सेकंड मेजर सोर्स है. रॉयल्टीज किस तरह से मिलती हैं? कितनी रॉयल्टीज मिलती हैं? रॉयल्टीज जैसे मैंने बताया कि अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से एक रॉयल्टीज आ रही है, बट रॉयल्टीज आप अगर आपके रेडियोस पे ट्रैक जा रहे हैं तो उधर से भी रॉयल्टीज आती है. जस्ट इमेजिन आपका ट्रैक आप मूवी में दे देते हो तो फिर आपका लमसम एक बहुत बड़ा अमाउंट आता है. डिपेंड्स कि आपने पूरे मास्टर राइट्स दे दिए मूवी को कि दिस इज योर ट्रैक, नाउ यू कैन डू एनीथिंग, या फिर आपने केवल लाइसेंसिंग बेसिस पे दिया. आप आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पे यू गिव ट्रैक्स, आजकल कोलैबोरेशन से यू गेट मनी. जस्ट इमेजिन आज मेरे साथ कोई कोलैब करना चाहता है तो I'll चार्ज अ फीस. अगर उसकी मेरी इतनी बड़ी फैन बेस नहीं है, मेरे इतने बड़े नंबर्स नहीं है, तो I'll चार्ज अ फीस कि आई एम प्रोवाइडिंग हिम माई ऑडियंस, राइट? तो आई वुड चार्ज अ फीस. कोलैबोरेशंस, फिर एक और ब्रांड एंडोर्समेंट. बहुत बड़ा पैसा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है, जो लोग ब्रांड साइन करते हैं. जस्ट इमेजिन इफ आई एम साइंड ऑन बोट, तो बोट वाले बोलेंगे जस्ट कैरी आर इलेक्ट्रॉनिक्स आपके साथ में, जस्ट की पोस्टिंग हमारे बारे में एंड सब, एंड दे चार्ज यू एनुअल फीस.
तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनकम. फिर बहुत सारे डीजेज है जो और भी चीजें लाइक प्राइवेट शोज, सबसे बड़े वेडिंग्स उठा रहे हैं वो. तो गिग्स हो गई, शोज हो गए. वो शोज वाले भी हैं. कभी कभी केवल आपके वहाँ पे प्रेजेंस के लिए भी यू गेट पेड. कि बहुत सारे लोग एज अ गेस्ट जा रहे हैं, एज अ गेस्ट दे आर गोइंग कॉलेजेस में, एज अ गेस्ट दे आर गोइंग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसके लिए दे गेट पेड. तो लॉट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम. बट डीजे के लिए केवल परफॉर्मेंस ही है. ये सारा म्यूजिक प्रोडक्शन वाला पार्ट था. तो डीजे के लिए केवल वो परफॉर्म करके कमा सकते हैं. एंड ही कैन हार्डली सेल द रिमिक्सेस एंड ट्रैक्स, जो भी अगर करता भी है प्रोड्यूस थोड़े बहुत तो. और लोग चोरी करते हैं ट्रैक्स. 100% करता है. सो हाउ डज दैट? बिल्कुल करता है. तो बहुत सारे यंग डीजेज एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है. तो व्हाट दे डू इज कि वो यूट्यूब पे ट्रैक डाल देते हैं विद द डाउनलोड लिंक. एंड उनको पता नहीं होता कि उनका कितना अच्छा ट्रैक है. हैव यू हर्ड दैट स्टोरी हनुमान जी वाली थी कि उन्हें खुद के पावर्स का पता नहीं होता. बिल्कुल. ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं भी उनमें से एक था जिसे नहीं पता था. मैंने एक ट्रैक $50 $100 में बेचा. वो ट्रैक अभी करंटली इट इज ऑन 103 या 104 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब. वो केवल $100 का ट्रैक था. अगर वो मैंने खुद ने निकाला होता तो मैं एक मिलियनेयर होता अभी. And you used a term called ghost producing. Yes. What is ghost producing? Ghost production is like जब आप दूसरे आर्टिस्ट के लिए ट्रैक बनाते हो. जैसे जस्ट इमेजिन कोई आर्टिस्ट टूर कर रहा है बहुत ज्यादा, जिसके पास टाइम ही नहीं है. आज मैं 10 शोज कर रहा हूँ महीने के. बहुत आर्टिस्ट है जो 25 शोज कर रहा है. तो वो क्या करते हैं, गोस्ट प्रोड्यूसर्स को हायर कर लेता है कि आप मेरे लिए ट्रैक बनाओ, आई विल पे यू. आपके कोई क्रेडिट्स नहीं होंगे. और इस चीज को भी आपको बिल्कुल गोस्ट ही रखना है. ये दिस इज द कोड, दिस इज द डील एंड दीज आर द रूल्स. कि आप किसी को बता नहीं सकते ट्रैक आपने बनाया, कभी नाम नहीं ले सकते. प्रॉपर साइंड एग्रीमेंट पे यू वर्क. बहुत सारी वेबसाइट है जिनके थ्रू यू वर्क, या बहुत सारे कभी कभी डायरेक्टली आपको इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर लेता है. तो जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, डज एनी वन ऑफ देम डू इट? करते हैं लोग, मतलब बड़े बड़े DJs? I can't name. हाँ, मतलब I can't name, but मतलब जितनी मेरी रिसर्च है, I can confidently say like 50% DJs यही कर रहा है. 50% DJs know what the software is, they know how to use it, but they can't make music on it. This is the ugly truth in Indian industry. I don't know about the abroad thing, but India में यही चीज़ है. 50% DJs है जो, और I'm telling the good DJs जिनको सब जानते हैं, they don't make their own music. उनके मेरे जैसा या कोई छोटा जो बिल्कुल ही यंग है, जस्ट इमेजिन कॉलेज का बच्चा है, जैसे मैं था अपने इनिशियल फेज पे, कि आई वाज वर्किंग एज अ जिम ट्रेनर. लोगों ने देखा कि इसे म्यूजिक बनाना आता है, ही मेक गुड म्यूजिक, ये लो $50 $100 एंड म्यूजिक दो. और मैंने खूब ट्रैक बेचे. एंड अभी भी लोग करते हैं खूब. मैंने खुद ने मोर देन लाइक 50-60 ट्रैक्स. और लोग अभी भी कर रहे हैं. बट आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. ये ऑडियंस को नहीं पता है, राइट? जस्ट इमेजिन इफ आई एम रिलीजिंग खुद का म्यूजिक मेरे नाम के अंडर, जो कि मैंने नहीं बनाया, तो ऑडियंस को तो वो गलत फहमी में दे आर गोइंग टू द शोज, राइट? ये उन्हें लग रहा है कि हम हमारे फेवरेट आर्टिस्ट को सुन रहे हैं, जबकि आर्टिस्ट ने वो ट्रैक बनाया ही नहीं है. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स इंडिया में. एटलीस्ट मुझे बाहर का नहीं पता. बाहर का भी आई हैव हर्ड द थिंग्स, बट इंडिया में मैंने हैव एक्सपीरियंस दिस. इंडिया में who are the most expensive DJs, like I and guess how much do they? तीन डीजे सबसे एक्सपेंसिव है. फर्स्ट इज न्यूक्लियर सर, ऑफ कोर्स. सेकंड इज रित्विस एंड थर्ड इज लॉ स्टोरीज. ये तीन सबसे एक्सपेंसिव है. इनके लॉ स्टोरीज, यस, लॉ स्टोरीज, प्रयाग एंड ऋषभ. ये सारे के सारे मेरी इंस्पिरेशन है, जिनको देख के मैंने म्यूजिक स्टार्ट करा, म्यूजिक बनाना भी. बिकॉज दीज आर द प्रोड्यूसर्स टू. इनके खुद के गाने भी है. तो दे चार्ज अराउंड लाइक आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट 5 लाख से 20 लाख के बीच में दे चार्ज, डिपेंडिंग ऑन द शो. 20 lakh I guess is the maximum they charge, and 5 lakh is the like base price. This is और the fees. जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स इंडिया में आके प्ले करते हैं, like who are not very famous, Yes. but like they're coming from Russia or European countries and all. Yes. And so ये एक शो का कितना पैसा लेते हैं, like approximately? बहुत कम. मतलब ये दिखते केवल ऐसा लगता है पोस्टर्स देख के कि some big artist is coming, but the truth is कि they are the एवरेज DJs फ्रॉम देयर कंट्रीज और सिटीज जो इंडिया में आ रहे हैं. इंडिया में आई गेस थोड़ा सा एक वाइट प्रिविलेज भी रहता है, थोड़ा सा बिकॉज ऑफ आवर कॉलोनियल हिस्ट्री. यस. तो हम जब भी किसी गोरों को देखते हैं तो हमें लगता है कि कुछ तो बड़ा सेलिब्रिटी आया. बट द ट्रुथ इज आई हैव सीन पीपल, स्पेसिफिकली मेल फीमेल बोथ, बाहर के यूक्रेनियंस, रशियंस यहाँ परफॉर्म करने आते. दे आर गेटिंग चार्ज 20,000 से लेके 60-70,000 रुपीज. मे बी इफ दे आर रियली गुड, मे बी 1 लाख रुपीज. फिर अब इफ दे आर रियली गुड एट देयर वर्क, फिर तो आई हैव सीन ऐसे बाहर के आर्टिस्टों को 1-1 करोड़ रुपए भी चार्ज करते हैं. बट अगर इफ दे आर जस्ट कमिंग बिकॉज दे आर फॉरेनर्स एंड दे जस्ट वांट टू परफॉर्म, एंड डू यू थिंक दे पुल मोर क्राउड देन अ गुड इंडियन डीजे? लाइक एन एवरेज, नहीं, बट एक एवरेज नॉन इंडियन डीजे, एक एवरेज इंडियन डीजे से दोनों बराबर के लेवल के हैं. Yes. Do you think the non-Indian guy will or a girl will
pull more crowd? इट डिपेंड्स मुझे लगता है कि क्राउड पुल करने का बहुत बड़ा रीजन होता है डे भी शो का. जैसे कई शोज होते हैं सैटरडेज को हो रहा है, सब कुछ सेम है. हाँ, Level playing Okay, field. okay. Saturday night हाँ. on a long weekend हाँ. or whatever. Saturday night weekend ही हो गया. I'm being very stupid. Yeah. So every same हाँ. day everything is fine, and then an average non-Indian DJ versus an average एकदम same level का Indian DJ. Do you think a non-Indian DJ, मेरे को लगता Yes, है of एक course non-Indian DJ will like, play of pull course, more crowd? of course नॉन इंडियन अगर एवरेज है दूसरा हमारा जो इंडियन Yeah. वाला डीजे है वो ऑफ कोर्स नॉन इंडियन ज्यादा पुल करेगा, पोस्टर से पुल कर लेगा. बिकॉज लोगों की मेंटालिटी ऐसा है ना कि बाहर का आ रहा है तो ही मस्ट बी गुड, Yeah. क्योंकि बाहर से वो हमारे आई डोंट नो वो ब्लड में ही है कि वी गिव दिस थिंग. बट It's similar to how we value non-Indian brands. यस In किसी भी चीज में ले लो, we value the non-Indian brands more than the Yes. Indian brands. यस Like so when I love protein bars. I don't eat too much, but whenever I eat, I want to eat a good protein bar. And earlier I used to get protein bars अगर कोई relative बाहर से आ रहा है, or if I'm traveling, I used to get Yes. protein bars from abroad. Quest वगैरह के protein bar आ गए. And then I discovered some Indian brands, or I'll take the name. I love Whole Truth के protein bars. यस Now when I'm eating a protein bar, I make sure I eat a good Indian brand's protein bar, like the Whole Truth versus a protein bar from abroad, because पहले you used to think यार इंडिया में इस तरह की क्वालिटी नहीं मिलती, and it has come to all the things now. हाँ Indian brands are producing good stuff, यस and not necessarily a non-Indian brand is better than them. यस So I think the same goes for the artists. We are Yes. producing some great artists and some great music Yes. here, and you're one of them. Acha, tell me कि जैसे for example, when you were producing music on Spotify, हाँ how do you get more people to listen to your music? Is it only by like an organic way, or is it how does it work? Or like for example, YouTube पे people share and Yes. like and comment, and Yes. then वो अपने आप viral होता जाता है. Yes, yes. How does it work on Spotify? ओके स्पॉटिफाई पे स्पॉटिफाई की खुद की प्लेलिस्ट होती है, सबसे बड़ा सोर्स है ट्रैक्स वायरल होने का. तो क्या होता है जब भी हम सॉन्ग अपलोड करते हैं ना, तो स्पॉटिफाई आर्टिस्ट के लिए एक अलग होता है, लाइक फॉर द बेसिक लोगों के लिए अलग होता है, और जिस पे हम सारे स्टैट्स देख सकते हैं हमारे लिए अलग होता है. वो हमें प्रोवाइड करता है एक स्पॉटिफाई के एडिटर्स को रिक्वेस्ट करना कि हमारे ट्रैक को प्लेलिस्ट में डालें, जो इस प्लेलिस्ट क्यूरेटर्स है. तो आई कैन लिटरली टाइप कि भाई मेरे ट्रैक में ये कोलैबोरेशंस है, ये एलिमेंट्स है, प्लीज मुझे लगता है ये इस प्लेलिस्ट में फिट होता है परफेक्टली. और स्पॉटिफाई के लोग उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं उस ट्रैक को, और अगर वो ट्रैक जेन्युइनली अच्छा है तो खुद की उनकी प्लेलिस्ट होती है, मिंट इंडिया, न्यू म्यूजिक फ्राइडे, वो उस पे उस ट्रैक को डालते हैं. इस तरह से ट्रैक मासेस तक पहुंचता है. बट इसमें भी बहुत ज्यादा वो है, मतलब बहुत ज्यादा अंदर चीजें Yeah, चलती because रहती so है. many people are doing it. यस तो अगर आप जेन्युइन सोर्स से जा रहे हो तो लिटरली यू कैन व्हाट्सएप दीज पीपल, राइट, जो आप डायरेक्ट उन लोगों को जानते हो. स्पॉटिफाई की 20 जनों की 30 जनों की टीम है इंडिया में. अगर आप डायरेक्ट जानते हो, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ बिग लेबल, डू यू थिंक लाइक अरिजीत सिंह सर जब रिलीज करते होंगे ट्रैक को, वो स्पॉटिफाई को ये मेल करते होंगे? course नहीं, not. वो दे जस्ट टेक्स्ट, राइट, कि हमारा नया ट्रैक आने वाला है, ट्रैक कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सल टी सीरीज, ये डायरेक्ट इन लोगों को भेज देते हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में डाल देते हैं. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. इट्स वेरी हार्ड फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ऐसे प्लेलिस्ट में जाना. बट अगर आपका ट्रैक अच्छा है तो स्पॉटिफाई के एल्गोरिदम को पता रहता है. जस्ट इमेजिन आपका ट्रैक अच्छा है, एक बंदा बार बार उसे सुन रहा है, तो उनको पता है कि इसके लिसनर्स रेगुलर बढ़ रहे हैं, वी शुड ऑल्सो लिसन टू दिस ट्रैक. एंड उसमें जेन्युइनली भी डलता है ट्रैक, ऐसा नहीं है. और ये भी सही प्रैक्टिस है, लाइक इफ यू आर अ बिग लेबल यू कैन लिटरली हेल्प दीज पीपल आउट, राइट. वो भी अपना मार्केट बना रहे हैं, वो भी चाहते हैं बड़े आर्टिस्ट हमारे स्पॉटिफाई से जुड़े सब हो. बट इंडिपेंडेंट रहते हो आप तो इट्स वेरी हार्ड. मैंने भी नोटिस अभी करा. इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट्स का मार्केट और उनकी जो इनकम है, डू यू थिंक इट्स ग्रोइंग बाय द डे, और इज इट हाउ इज इट इन इंडिया? लाइक किस तरह का स्कोप है, कैसा है? इंडिपेंडेंट अच्छा है अभी, बहुत बढ़िया चल रहा है. सानुव जैन इज बिगेस्ट नेम, प्रतीक कुहाड़, ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, किसी लेबल्स के थ्रू नहीं आते, सब आते हैं. बट अगेन शोज करना ना, वही आपकी इनकम बनाएगा. टू बी ऑनेस्ट, आप रॉयल्टीज पे यू कांट सर्वाइव. नो मैटर आपका ट्रैक 100 मिलियन चल जाता है, स्टिल यू कांट सर्वाइव. एक टाइम पे वो कम हो गई, वो दैट इज द ट्रुथ. आप एक पिरामिड पे चलता है हमेशा, कि एक पॉइंट हिट करोगे उसके बाद नीचे आओगे. अगर आप शोज नहीं कर रहे तो आप नीचे ही जाओगे. शोज कर रहे तो यू कैन सस्टेन या फिर यू कैन ग्रो ऑल्सो, बट शोज नहीं कर रहे तो नीचे. और इंडिपेंडेंट करते हो आप तो शोज करना इट्स वेरी हार्ड. और देयर आर सो मेनी स्टोरीज अबाउट हाउ लेबल्स जो होते हैं जिनके साथ आप डील वगैरह साइन करते हो, दे रिप यू ऑफ. यस एंड इवन इफ यू नो
your song reaches whatever million listeners, you don't make any extra money from what they've given you. So how does that work? Like किस तरह से labels काम करते हैं industry? Okay, labels जब आप beginner artist हो, just imagine आपका track अच्छा है, तो what label does is कि वो आपको कोई पैसा नहीं देगा, they're gonna take your track and वो बोलेगा आपकी वीडियो बना देते हैं कि आपका वीडियो का जो भी है वो हम देख लेते हैं, आप ट्रैक दे दो, बट जो भी अर्निंग आप ट्रैक से होगी वो सब हमारी होगी. तो दे डोंट पे यू एनी अमाउंट, दिल जस्ट हेल्प यू आउट विद द प्रमोशन मार्केटिंग इन द वीडियो. वो आपको खुद की ऑडियंस दे देंगे, दिल गोना अपलोड योर ट्रैक, बट आपको अपफ्रंट पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा. जैसे जैसे आप बड़े आर्टिस्ट होते जाते हो तो आपको अपफ्रंट पैसा भी मिल रहा है प्लस वीडियोस भी वो बना रहे हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज आई हैव हर्ड एक्सप्लॉइट होते हुए आर्टिस्ट को कि आर्टिस्ट का ट्रैक बहुत अच्छा था, लेबल को पता था वो चीज़, लेबल ने केवल उससे ये डील दे दी हम तुम्हारी वीडियो बना देंगे, उस आर्टिस्ट खुश हो जाता है आर्टिस्ट, बिकॉज वीडियो इज अ बिग थिंग फॉर देम. वो वीडियो जैसे बनवाते हैं, अब लेबल को पता है वो फटने वाला है ट्रैक, एंड वो ट्रैक सच में फटता है बहुत ज़्यादा और आर्टिस्ट को कुछ नहीं मिलता. एंड लेबल्स का काम ही है फ्रेश आर्टिस्ट को ढूंढना. तो अगर वो आर्टिस्ट रेगुलर उनके लिए नहीं बना पा रहा है म्यूजिक, तो दिल जस्ट गोना रिप हिम ऑफ फ्रॉम द डील एंड सब. Yeah, I think being a DJ and making money on the go while you're traveling is a great job. Yes. Much better than for someone who's starting out. Yes. Of course. Yes. When you become a big artist, you know that's a different case. Yes. अच्छा चलो इस बात पे ये बताओ कि 17-year-old like you wants to become a DJ. Okay. How does a young person start to become a DJ? Okay. फर्स्ट अभी सबसे आई गोना टेल यू द पिनिशिया रामबाण इन सब चीज़ों का, वो है सोशल मीडिया. अगर आपका सोशल मीडिया अच्छा है तो यू डोंट हैव टू रिलीज म्यूजिक, यू डोंट हैव टू डू नेटवर्किंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. अगर आपका सोशल मीडिया स्ट्रांग है, पीपल वुड रीच यू आउट. आई वांट टू आस्क यू कि सीखेगा कैसे वो? हाउ डज वन लर्न? ओके, मैं पूरा स्टार्ट से बता देता हूँ. फर्स्ट अब अटेंशन इकोनॉमी चल रही है. अगर आप लोगों की अटेंशन ग्रैस्प कर सकते हो, यू कैन अर्न मनी, यू कैन मेक करियर. सबसे फर्स्ट देखो कि आपका इंस्टाग्राम दिख कैसा रहा है. ट्रीट योर सेल्फ एज अ ब्रांड, नॉट एज अ पर्सन, एज अ ब्रांड. कि आपने कंपनी स्टार्ट करी है, पहले तो आप ऑफर क्या कर रहे हो, क्या वो ऑफर लोगों का है उधर, मतलब वो डिमांड है इस चीज़ की जो आप ऑफर करो. जस्ट इमेजिन यू आर प्रोड्यूसिंग डब स्टेप म्यूजिक, दिस इज द रॉन्ग वे टू स्टार्ट करियर, बिकॉज आपको यही नहीं पता कि इस चीज़ की डिमांड ही नहीं है. आपने प्रोड्यूस तो कर दिया बिकॉज यू आर टू एरोगेंट टू आइडेंटिफाई कि भाई ये म्यूजिक मुझे नहीं बनाना चाहिए. आपने बोला मैं बनाऊंगा. इट इज़ गुड, इट वर्क्स फॉर समवन, बट नहीं करता. पहले ट्रेंड फाइंड आउट करो, फिर उस स्किल को सीखो कि वो स्किल क्या है, कितना टाइम उसे लगता है, प्रॉपर गाइडेंस में रहो. उसके बाद में स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग. जितनी जल्दी गलती करोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे. डोंट वेट ऐसे परफेक्ट मोमेंट का कि मैं जब मेरा परफेक्ट ट्रैक बन जाएगा ना तब मैं अपलोड करूंगा. नहीं, आई हैव सीन रफ ड्राफ्ट्स को फटते हुए. जो रफ ड्राफ्ट होता है, लिटरली आई हैव सेंट यू अ ट्रैक कि सर मुझे ये अच्छा लग रहा है, आप सुन के बताओ. वो आपने अपलोड कर दिया ना, वो फट गया, वो अचानक से वायरल हो गया, पीपल आर मेकिंग रील और सब कुछ चीज़ें. तो जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग, गलती करो, लोगों से सीखो. और द बेस्ट पार्ट इज अपने आप को हमेशा लर्न करवाते रहो चीज़ों को. डोंट ऐसे कि मुझे बस सॉफ्टवेयर यूज़ करना आ गया, आई एम गुड. नहीं, सब चीज़ों पे ध्यान दो. आज की डेट में आर्टिस्ट को ही खुद वीडियो एडिटिंग करनी है, आर्टिस्ट को ही ग्राफिक डिजाइनर बनना है, आर्टिस्ट को ही परफॉर्म भी करना है, आर्टिस्ट को अकाउंटेंट भी बनना है. तो यू हैव टू हैव दीज स्किल्स. सबसे पहले म्यूजिक बनाना सीखो. वो कैसे करे? कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करे, कौन सा लाइक अगर कोई इक्विपमेंट चाहिए तो कौन सा इक्विपमेंट यूज करे, कितने का आता है? बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ. कुछ भी आपको इक्विपमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है. टू बी ऑनेस्ट म्यूजिक में सब झूठ है, सब मिथ है. कोई अगर बोले आप मुझे मेरी बात करवाओ कि इक्विपमेंट जरूरी होता है, कुछ नहीं होता है. आपको केवल एक लैपटॉप चाहिए. लैपटॉप शुड बी i3 से ऊपर वाले लैपटॉप, क्योंकि वही डॉस सपोर्ट करता है. सेकंड थिंग, जस्ट गो ऑन imageline.com, वहां से FL Studio का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, फ्री में मिल जाएगा आपको वेबसाइट से. लेजिट, नो क्रैक, नथिंग, टॉरेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं. आपने वहां से डाउनलोड करा सॉफ्टवेयर को, गो सर्च यूट्यूब पे जाके दृष्टिकोण प्रोडक्शन FL Studio कोर्स. 15 क्लासेस का आपको एक पूरा लिस्ट मिल जाएगी. उनको लो, 20-20 मिनट की क्लासेस है केवल, ज़्यादा वो नहीं है. उससे आप UI सीख जाओगे कि ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है. उसके बाद में फिर बिजी वर्क्स बीट्स मैंने बताया, एक है 2 Pro बीट्स, इनको एक काइल बीट्स. ये सारे लोग मेंटोर्स है यूट्यूब पे जो कि सिखा रहे हैं. इनके कुछ ट्यूटोरियल्स देखो कि किस तरह से म्यूजिक बनता है, सब होता है. और उसके बाद में जब भी आए ग्राफिक डिजाइनिंग की बात या जब भी आए वीडियो एडिटिंग की, 2 चीज़ों को ध्यान रखो. फर्स्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए देयर इज दिस टूल कॉल्ड कैनवा. कैनवा आप यूज करो. कैनवा पे यू कैन मेक योर ओन क्रिएटिव सॉन्ग के कवर्स, इंस्टाग्राम की स्टोरीज. सेकंड चीज इज कैपकट. आप प्रीमियर प्रो वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, बिकॉज प्रीमियर प्रो भले वो इंडस्ट्री नॉट सॉफ्टवेयर है, बट उसके लिए एक प्रोसेस लगता है. अगर छोटा सा उसमें कुछ करना है, यू हैव टू अप्लाई ट्रांजिशन, उसका एक प्रोसेस है. जस्ट ओपन कैपकट में करो. कैपकट नहीं है तो मोबाइल में डाउनलोड करो InShot एंड VN. इनसे आप अपने कंटेंट क्रिएशन पे भी ध्यान दो. व्हाटएवर यू आर मेकिंग वो एक अच्छे फॉर्म में लोगों को प्रेजेंटेबल वे में दिखना चाहिए. एंड कीप अपलोडिंग. एक ऐसे करो कि ट्रीट इसको ऐसे करो जैसे ये लॉटरी का एक लिवर है.
आप जितनी बार खींच रहे हो, नई बात बन रही, जितनी बार कर रहे हो, सोचो अनलिमिटेड चांस है। कोई हमारे पास रील्स का कोई नंबर नहीं होता राइट, कि 30 ही डाल सकते हो 40 ही, अनलिमिटेड बार डालो। कोई ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि एक इंसान जो हार्डवर्क करता था, खुद से ऑनेस्ट था, वो लाइफ में नहीं कुछ कर पाया। कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर आप ऑनेस्ट हो खुद से, आपको पता है आप स्किल्ड हो, आपको पता है आपके सही कनेक्शन है, आपका वर्क अच्छा है, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो खुद के वर्क को लेकर, डालते जाओ, वो लिवर को खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ। एक बार एक टाइम आएगा, एक चीज़ फटती है, पीछे का सब फट जाता है। एक चीज़ वायरल होती है, पीछे का सब वायरल, एंड फिर जर्नी इज ईजी, बिकॉज अब लोग आपको अप्रोच करेंगे आपके वर्क के लिए। यू डोंट हैव टू ट्रैवल टू बॉम्बे, चेंज सिटीज, घर वालों से पैसा, कुछ भी नहीं। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर मिस करते हैं लोग, एक खुद का फाइनेंशियल बैकबोन होना चाहिए। ये चीज ना डिमोरलाइज बहुत तेज करती है, कि आपने 10 घंटे बैठ के म्यूजिक बनाया, अगर वो नहीं चलता, लोग बोलता है नहीं यार मेरे लिए नहीं है, नहीं, गिव अप कर जाते हैं। और घर वाले कोसने लग जाते हैं एक पॉइंट पे कि यार क्या कर रहा है, क्योंकि नहीं समझते राइट, वी आर फ्रॉम इंडिया, हम लोगों को नहीं समझा सकते। इवन मेरी फैमिली आज भी नहीं समझती है। I was going to ask you, how does your family react to your the kind of work that you do? अभी भी मतलब they don't know, my mother is not that well educated, तो जब भी उनसे कोई पूछता है कि बच्चा क्या करता है, तो डीजे एक टैबू की तरह है राइट। इंडिया में आप देखोगे, अगर आप रैंडम लोग को बोलोगे डीजे, तो उसे लगता है शादियों में बजाता होगा, है ना, उन्हें नहीं पता। वो बोलते म्यूजिक बनाता है, बट वो नहीं बता सकते राइट व्हाट ही डज वगैरह, जब तक वो वीडियोस ना देखे और उन्हें पता ही, वो समझ ही नहीं पाते, प्रोसेस ही नहीं कर पाते। तो मेरी फैमिली को अभी भी लगता है ये वाली चीज को कि नहीं, डीजिंग है थोड़ा, इतना ऐसा नहीं है कि दे आर वेरी प्राउड, सारी चीजें, बट जब भी ऐसे सोसाइटी में बताते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है नहीं यार डीजे, क्योंकि वो अगला वैसा रिएक्ट करता है। उनको तो दे आर वेरी प्राउड, दे हैव सीन द जर्नी, बट अगला ऐसे उनको कहता है यार डीजे है, दे डोंट नो डीजे राइट, उन्हें नहीं पता कि डीजे के साथ इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर गेटिंग पेड ऐसे लाखों में, बट नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि डीजे शादियों में बजाता होगा। ये अच्छा टेंजेंट पे जा रहे, लेकिन मजा आ रहा है मेरे को। आई हैव टू आस्क यू दिस कि आई हैव seen your videos when you are going for a show, when you are entering the venue. Yes, you have like these 10-20 cars behind you, and then hundreds of people, or maybe 5-10 bouncers साथ में चल रहे हैं, and then you are entering the venue. Yes, so you work a lot on your personal branding. Yes, first of all, how do you do it, and then why do you do it? Okay, so ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में ये जो टोरा कल्चर है ना, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू गेट जज्ड। और मेन चीज़ कभी कभी ये सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं। जब भी हम परफॉर्म करते हैं टीयर 2 सिटीज़ ना, यू कांट मेक एवरीबडी हैप्पी। किसी को कुछ और सुनना है, किसी को कुछ और सुनना है, आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो यू मेक अ लॉट ऑफ एनिमीज, यू मेक अ लॉट ऑफ हेटर्स। टीम नहीं चाहती है कि आप किसी भी तरह कोई ऐसे पैरानोया स्टेट पे जाओ जहाँ पे आपको लगे नहीं यार आई एम नॉट सेफ हियर। तो वो हमेशा सिक्योरिटी चेक रखती है, प्लस कुछ चीज़ मस्ती के लिए भी करी जाती है। यू बुक गुड कार्स, यू आस्क ऑर्गेनाइजर्स टू गिव यू लाइक 10 पीपल सिक्योरिटी के, भले जरूरत नहीं है 100 जनों का वेन्यू है, बट 10 जने साथ में सिक्योरिटी के जा रहे थे। इट इज नाइस। Does it impact your work also? क्योंकि like when people see you, you were telling me an example a while back, right? Can you share it? Yes, if you can 100%, tell me, share. So we were having a show पूर्णिमा कॉलेज में, जयपुर में। तो वहाँ पे एक A-lister आर्टिस्ट है, of course I'll not name him. तो I was opening for him. और उसके बाद में let's say his name is X. Yes, his name is X and I was opening for X. और उनकी ऐसा हुआ कि जस्ट बाद में वो परफॉर्म करने वाले थे, वेन्यू पे पहले पहुंच गए थे। तो वो BMW में आते हैं। अब ही इज़ अ मेन आर्टिस्ट राइट, BMW पे एक्सपेक्ट करते हो। और मैं आ रहा हूँ पीछे मेरी टीम के साथ में, वी आर हैविंग 3 हैरियर्स, एक फॉर्च्यूनर, एक GLS, एंड साथ में 10 बाउंसर खुद के पर्सनल। तो हम वेन्यू में घुसते हैं, पीपल गॉट कंफ्यूज यार मेन आर्टिस्ट कौन सा है, who is X and who is Trapper X। लोग बोल रहे हैं ये जो ज्यादा गाड़ियां लेके आया ना ये X है, क्योंकि यार वो तो ओपनिंग आर्टिस्ट है, BMW में आया है। और जो मेन आर्टिस्ट था X, वो ऑर्गेनाइजर से पूछ रहा है कि ये आर्टिस्ट कौन है, ओपनिंग आर्टिस्ट तो वो, मेन आर्टिस्ट तो मैं था। तो पूरा वो माहौल ऐसा बदल गया था ना। इट वर्क्स, मतलब it does happen, मतलब it does impact your branding, marketing, किस तरह से आप अपने brand को किस तरह से marketing। That's why I believe personal branding is very, very important. Yes. In anywhere, and secondly in India it is not really done well. Log like for example इतने बड़े entrepreneurs, now entrepreneurs are becoming celebrities. Yes. Right. But you look at people like Elon, Bill Gates, Jack Ma, and all of these guys. They have been, they are not just entrepreneurs, but they are also personal brands. Correct. Right. So if Tesla launches a bottle of tequila, it sells out. Correct. And the next day, not because it is a great tequila, but because it is by Tesla, which is obviously by Elon. So I think personal branding is very important. And it is. In your business, which is show business,
उसमें तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा और मुझे लगता है काफी ज्यादा डीजे इसे नेग्लेक्ट भी करता है जस्ट टू सेव सम मनी या फिर जस्ट टू. कितना पैसा लगता है इसमें एक शो में? लाइक हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन एन एवरेज? ऐसे टोटल सिक्योरिटीज पे ऑन एवरेज लाइक टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं स्पेंड होता आर्टिस्ट का. हमारा एक टेक राइडर करके चीज जाती है जैसे टेक एंड हॉस्पिटैलिटी राइडर बोलते हैं. तो जस्ट इमेजिन उसमें अगर आपने लिख दिया कि आई विल बी नीडिंग दिस एक्सपेंसिव अल्कोहल, ऑल्दो नहीं है मेरा कोई इन सब का शौक, बट आर्टिस्ट लिखते हैं कि वो अगर 20,000 रुपए का लिख देंगे तो द ऑर्गेनाइजर हैज टू प्रोवाइड इट. वो मना नहीं कर सकता. अगर वो लिख देगा कि आई नीड दिस फैंसी होटल, मुझे 30,000 रुपए का कमरा चाहिए, आई वॉन्ट माई होटल टू बी नियर द एलिवेटर द रूम, वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे. दे कांट से नो. आप बोलोगे मुझे मर्सिडीज चाहिए, दिल गोना प्रोवाइड यू, बट आपको उतनी वैल्यू बनानी पड़ेगी. ट्रू. ऐसा नहीं कि कोई भी आर्टिस्ट जाके और देनी भी पड़ेगी बिकॉज़ देन द नेक्स्ट वन इज नॉट गोइंग टू कॉल यू. 100% उन्हें पता है इस चीज का कि अगर हम किसी आर्टिस्ट को इतना पैसा दे रहे हैं ना तो हम इतना बना रहे हैं. वो पहले कैलकुलेटिव रहता है. नोबडी इज डम इन दिस इंडस्ट्री. सबको पता होता है कि इफ दे आर कॉलिंग ट्रैपर एक्स, उन्हें पता है वेन्यू फुल होगा, इतना पैसा बनेगा, इतना सब है, ये इसकी डिमांड है. ऑल्दो मैं नहीं करता इतनी डिमांड टू बी ऑनेस्ट. मेरा टेक और हॉस्पिटल राइड है, ऐसा क्रेजी नहीं होता. पीपल डू इट. हाँ, पीपल डू इट. एंड कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ. इफ आई एम गोइंग टू सम फैंसी सिटी, मैं भी कि चलो भाई अपन को ये होटल चाहिए, वो चाहिए, बट सब चीजें ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से होती है. सब चीजें ऐसे होती है कि उनका कुछ लॉस नहीं होना चाहिए. वी ट्रीट देम एज फैमिली और वो दे ट्रीट अस एज अ फैमिली. वो अच्छे से बिकॉज़ इट इज एन इकोसिस्टम. यू आर बोथ हेल्पिंग वन अनदर. यस. अगर ऑर्गेनाइजर आपसे खुश नहीं होगा और आप ऑर्गेनाइजर से खुश नहीं होगे, देन हाउ यू गोना मेक इट वर्क? यस. अच्छा, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जहां से हमने टेंजेंट लिया था कि किस तरह का इक्विपमेंट वगैरह यूज करना चाहिए. इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में यू ऑलरेडी टोल्ड. कैसे कोर्स लर्न करना यू टोल्ड. सॉफ्टवेयर, हैव यू टोल्ड अबाउट द सॉफ्टवेयर? FL Studio. Right, FL Studio. Okay, that's the software. Yeah. What kind of equipment one must buy to be a good DJ, and then what kind of equipment do you use? Okay. Just आप start करें तो I don't think you need anything apart from a laptop or a computer. Okay. A basic computer, basic laptop. उसके बाद you'll be needing एक pair of headphones and speakers. अब ये different होता है normal speakers and headphones से जो music production वाले आते हैं. Normal होते हैं हमारे, just imagine if you are getting Sony, Bose, ये सारे amplified होते हैं. मतलब अगर आप Sony ले रहे हैं तो ये bass boosted होता है. अगर आप Bose ले रहे हैं तो उनमें trebles जो होती है, high end जो होता है गाने का, वो crisp होता है बहुत ज्यादा. बट हम म्यूजिक प्रोडक्शन में यूज करते हैं मॉनिटर्स. इन्हें फ्लैट स्पीकर्स बोलते हैं. फ्लैट स्पीकर्स का मतलब है कि वो वही साउंड प्रोड्यूस करेंगे जैसा ट्रैक है. दे वोंट एम्पलीफाई एनीथिंग. तो आपको मॉनिटर स्पीकर्स या मॉनिटर हेडफोन्स बाय करने होते हैं. थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं कमर्शियल वालों से. उन्हें आप यूज करो, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे. वो ईयर फ्रेंडली भी होते हैं कि आप इतना ज्यादा उन्हें तेज नहीं करते बिकॉज दे आर वेरी क्लियर. वो सांस की भी आवाज आ रही होती है उनमें. दे आर वेरी क्लियर. आप उन्हें यूज करो. द कंपनीज आई वुड सजेस्ट प्रीसोनस आप कर सकते हैं. Amazon पे you'll get it. 10-12 हज़ार रुपए के स्पीकर्स आएंगे. बहुत चलते हैं. 4-5-6 साल हो जाते हैं. मैंने 5 साल यूज करा उन्हें. उसके बाद में अगर मैं मेरी बात करूँ, अब मैं टू बी ऑनेस्ट अभी भी मेरे पास एक कंप्यूटर ही है. बहुत अच्छा स्टूडियो बना रखा है मैंने, फैंसी स्टूडियो है, बट केवल उसमें कंप्यूटर यूज आता है. टू बी ऑनेस्ट आई हैव माय ओन डीजे कंसोल एज वेल. सब कुछ घर पे सेटअप कर रखा है, बट अगेन केवल कंप्यूटर काम आता है एंड मॉनिटर स्पीकर्स काम आते हैं. और ये जो like the machine that the console that the DJs use on a show, वो कौन सा होता है, क्या होता है? ठीक है, वो पायनियर के मोस्टली होता है. 95% मार्केट जो डीजिंग इंडस्ट्री में वो पायनियर का है. तो पायनियर के वो कंसोल्स होते हैं ना, डीजे कंसोल्स बोलते हैं. बहुत सारे लोग डीजे डेक्स भी बोलते हैं, बट कंसोल इज द राइट टर्म. वो होता है अभी जैसे उनके मॉडल्स आते हैं बहुत सारे. CDJ बोलते हैं उन्हें. CDJ 2000, 3000. ये यूजुअली आपको क्लब्स में सेम मिलता है. जैसे अभी मैं किसी भी इंडिया के क्लब में जाऊंगा ना, या तो मुझे वहाँ CDJ 2000 मिलेगा या 3000 मिलेगा. 3000 इज द मोस्ट सबसे इंडस्ट्री नॉच का वो होता है. बट दिस गियर्स आर वेरी एक्सपेंसिव. लाइक अगर आपको 3000 आपको पूरा सेट बाय करना है डीजे का, तो वो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए का आता है. 9 से 10 लाख रुपए का. जस्ट द कंसोल. नो स्पीकर्स, नो माइक, नो हेडफोन्स, जस्ट द कंसोल. तो 10 लाख के अराउंड वो आता है. बट आई वोंट सजेस्ट कि कोई भी उधर जाए. अगर आपकी पॉकेट इतना अलाउ करती है, स्टिल डोंट गो. कंट्रोलर्स आते हैं, छोटे कंट्रोलर्स होते हैं, वो डीजे का ही काम करते हैं. पूरा कंसोल होता है, बस उनमें फीचर कम होते हैं. तो उनमें आप बेसिक यूज कर सकते हैं. जस्ट इमेजिन जब भी आप कार सीखते हो, BMW से सीखते, राइट? यू यूज एक सिंपल सा व्हीकल और उसके बाद में फिर यू जंप ऑन दीज बिग फैंसी कार. सेम गोज विद कंसोल. जैसे आप एक बेसिक, और बेसिक काफी सस्ते आते हैं कंपेरेटिवली. वो 15,000, 20,000 का यूल गेट. और वो खूब चलते हैं, उन्हें डायरेक्ट कनेक्ट करो और उसके बाद में फिर यू कैन जंप ऑन द कंसोल. अगर आपकी पॉकेट इतना वो करती है तो अलाउ. ऑसम. क्लब की बात कर रहे थे. टेल मी व्हाट आर द टॉप क्लब्स यू हैव परफॉर्म्ड इन इंडिया. लाइक मेरा सबसे टू बी ऑनेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस, हाँ, मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था सनबर्न यूनियन का. ये बैंगलोर का एक क्लब है विच इज द नंबर 1 क्लब इन इंडिया. ऑफ कोर्स नंबर 1 टू बी ऑनेस्ट ना आजकल सब्जेक्टिव है. हाँ, नंबर 1 वाली चीज ना, बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, वहां पे नंबर 1 था. तो ऐसा नंबर 1 कुछ भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट. देयर इज नो लिस्ट.
क्या होता है नंबर 1 क्लब्स का मतलब है कि वो सबसे बड़े आर्टिस्ट होस्ट करते हैं। तो सनबर्न यूनियन करके एक क्लब है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट होस्ट कर रहे हैं। विनी विंची अभी उन्होंने होस्ट करा था लास्ट मंथ पे, वहां पे आई प्लेड और वहां की वो क्लिप थी कहो ना कहो वगैरह वाली, इट वेंट वायरल, ह्यूज क्लब, ह्यूमंगस क्लब, यस यस। एंड जितने भी नंबर 1 क्लब्स जो बाकी लोग भी बोल रहे हैं उधर भी आई विल बी परफॉर्मिंग इन दिस टूर, भले वो प्रिज्म हो, भले वो बड़े बड़े क्लब्स हैमर्स हो, तो आई विल बी परफॉर्मिंग बड़े बड़े इंडिया के क्लब्स भी। बट टू बी ऑनेस्ट क्लब्स में ना ऐसा वाला सीन है कि आई लाइक ओपन एयर लाइक बेटर देन क्लब्स, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, लोग डेडिकेटेडली आपका म्यूजिक सुनने आए हैं वहाँ पे ओपन एयर्स में। क्लब्स में क्या थे, उनका बर्थडे रेगुलर सैटरडे नाइट को आए, रेगुलर वीकेंड पे आए, दे डोंट ऐसे डू दिस थिंग कि भाई आर्टिस्ट कोई आ रहा है तो इसे सुनने जा रहे हैं। बट जब ओपन एयर होता है ना, लोग आपको डेडिकेटेडली सुनना है, भले कॉलेज कैंपसेस हो, वहाँ पे यू मेक रियल फैंस। क्लब्स में तो ऐसा है कि यू जस्ट गिव देम गुड टाइम, बट जब कॉलेजेस करता हूँ मैं, ओपन एयर करता हूँ, वहाँ पे आई मेक रियल फैंस। वहाँ पे लोग डेडिकेटेडली सुनना है आपका म्यूजिक को, दे स्टार्ट क्राइंग एंड सब चीजें। तो आई हैव सीन बहुत सारी इमोशनल मोमेंट्स कॉलेज। टेल मी अ क्रेजी मोमेंट फ्रॉम वन ऑफ द शोज। क्रेजी एक हुआ था, वो ऑफ कोर्स क्रेजी नहीं था, बहुत एम्बैरेसिंग था, बट आई विल टेल यू। तो देयर इज दिस यूनिवर्सिटी कॉल्ड पैक व्हिच इज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, काफी बड़ा यूनिवर्सिटी, काफी वो। मैं फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ गया, मैंने बोला यार चलो ठीक है अपन कॉलेज में करेंगे, बहुत बड़ा कॉलेज था। सुनिधि मैम वाज ओपनिंग, मतलब ऑफ कोर्स वो मेरे लिए ओपन नहीं कर रही थी, वो सिंगर थी, एंड यूजुअली क्या होता है सिंगर्स ओपन करते हैं, डीजेस क्लोज करते हैं। तो सुनिधि मैम का सेट चल रहा था, मेरा जस्ट उसके बाद में था, ह्यूज क्राउड सब कुछ, और उस दिन था वर्ल्ड कप का फाइनल और इंडिया हार गई। मेरे एक ट्रैक मैंने प्ले करा, जस्ट फर्स्ट ट्रैक मेरा हुआ था स्टार्ट, और इंडिया हार गई। ओह गॉड, सब बंद, पुलिस चढ़ गई स्टेज पे, बिकॉज यू नो ऐसे लोग पार्टी कर रहे हैं, इंडिया हार गई, तो वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती थी। तो मुझे बोला आप म्यूजिक बंद करो, मे बी पीपल कुड हैव गॉटन एंग्री एंड यस यस यार, लिटरली मैंने एक ट्रैक बजाया। मैं जयपुर से फ्लू टू चंडीगढ़ एक दिन पहले, बिकॉज फ्लाइट नहीं थी सेम डे की। मैं 2 दिन से चंडीगढ़ में हूँ जस्ट फॉर द शो। फर्स्ट ट्रैक बजाया था, द इंट्रो, और उस पे शो बंद। आई वाज वेरी अपसेट, बट हर चीज एक रीजन के लिए होती है आई गेस, कि पता नहीं मैं आ रहा था, आई वाज वेरी अपसेट, बट टाइम के साथ आई हैव रियलाइज कि नहीं, दीज आर द पार्ट ऑफ द जर्नी। और फिर उसके नेक्स्ट बार जब अच्छा शो करते हो ना, तो यू आर मतलब एक्स्ट्रा ग्रेटफुल कि क्या बात है, लास्ट शो ऐसा। और कभी क्रेजी फैन एक्सपीरियंस हुआ कुछ? बहुत हुआ है, हर शो पे होता है, हर शो पे होता है। लाइक अभी रिसेंटली हुआ था JCRC में, एक लड़की थी, फर्स्ट ईयर की लड़की थी, उसने जब मैं परफॉर्म कर रहा था ना, तो उस टाइम पे बैठे बैठे शी ड्रू अ पेंटिंग मेरे लिए, मतलब पूरा लाइव ऐसे बजाते हुए, एंड आई वाज परफॉर्मिंग एट दैट टाइम। वो सामने बैठी थी, तो मैंने देख लिया था, शी वाज सिटिंग, बिकॉज सब लोग खड़े हुए थे, बैठा हुआ इंसान अलग दिखता है, वो बैठी हुई थी, और आई वाज परफॉर्मिंग। और 1 घंटे के बाद जब आई वाज लीविंग द वेन्यू, काफी सारी सिक्योरिटी थी साथ में, सब था, तो उसने उसके बीच से एक बाउंसर को बोला कि आप उन्हें दे दो, और वो बाउंसर मेरे पास लाया कि सर ये आपके ऐसा है। आई वाज ब्लोन अवे। मेरे घर पे अभी भी वो स्टूडियो में टंगी हुई है वो पेंटिंग। वो दैट वाज अ बेस्ट मोमेंट। फिर उसको बुलाया, वी हैड अ पिक्चर टुगेदर एंड सब कुछ। How many hours do you play in a show? Depends. जैसे कॉलेज में प्ले 1 hour का सेट होता है। Do you get paid by the hour? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बाय द शो, yes. तो 1 घंटे का अगर शो है, 1 घंटे का शो यूजुअली ओपन एयर्स होते हैं, वो 1 घंटे के होते हैं, और 2 घंटे फिर क्लब्स के होते हैं, नॉट मोर देन 2 hours। हो जाता है कभी कभी जब पीपल एक्सपेक्ट मोर म्यूजिक फ्रॉम यू, बट 2 hours इज द लिमिट, इज द थ्रेशोल्ड। And do you have like sportsman की एक प्री गेम रिचुअल होती है? Yes. कि like for example if somebody is into basketball, they would listen to certain kind of music, or Yes. you know, blah blah blah. Yes. So do you have a pre-gig ritual? I do. So I literally have a spiritual ritual. So I'm a very spiritual guy, right? So show से पहले मैं कुछ तो I chant something good to calm myself up, because मैं बहुत हाइप हो जाता हूँ अचानक से, इतना सब वो देख के ना लोगों वगैरह को। उसके बाद में थोड़ा सा काम होता है, कुछ ना कुछ I chant spiritually, और उसके बाद मैं I'll just have my black coffee, वो रेगुलर है शो से पहले, और फिर I play. Nothing else. That's a simple good pre-gig ritual. Yeah. What is your dream festival to perform at? Dream venue or whatever. For the festival, I would love to perform in Tomorrowland. Of course, I think वो हर DJ का एक yes dream होता है. I will make it happen by next year. I'm saying this on the podcast, on the records. We'll make it happen next year. I hope you do. Yes. We are already in touch, and we're gonna make this happen next year. और वेन्यू की बात हो, वेन्यू बहुत सारे, अभी प्रिंट वर्क्स करके एक वेन्यू है लंदन में, दैट वुड बी माई ड्रीम वेन्यू। अभी वो रेनोवेट हो रहा है, बट प्रिंट वर्क्स वो सेकंड बिगेस्ट क्लब है दुनिया का, तो वो अभी रेनोवेट हो रहा है। हाँ, फर्स्ट इज हाई इबीजा, HI हाई इबीजा। तो हाई इबीजा आई थिंक इट इज़ मोर कमर्शियल, बट जैसे आप कैमल फैट की बात कर रहे थे आप, बाकी एनिमा हुआ इन सब के, और मसानो, ये सारे आर्टिस्ट जाते हैं प्रिंट वर्क्स में।
तो एक Okay. अच्छा डार्क थीम पे क्लब That है. means I have good taste in music. Yes, then. yes. Okay. Okay, Sushil, I always ask this one question from all my guests. What advice would you give, would Trapper X give to somebody who is in their teens or early 20s, maybe your age? Yes. It could be about anything. Yes. Tell me. It is very hard to like explain in one or two lines, but I would say hard work and hard work. केवल hard work की एक चीज़ है. Consistent रहो. Forget about everyone else. जो भी कोई कर रहा हो, भूल जाओ. लोगों के ट्रेंड में मत जाओ कि लोग वो कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए. लोगों से एडवाइस ले रहे हो. Just know your purpose, know your goal, and उस पे just work hard. Nothing else. मेरा कुछ भी मैंने नहीं करा. मैं सब भूल गया था. दोस्त कौन, क्या परिवार, सब कुछ. बस मुझे पता था मुझे ये करना है. एंड उस पर काम करते जाओ. जस्ट स्टे ट्रू टू योरसेल्फ. किसी का मत सुनो. यू आर नॉट लेट फॉर एनीथिंग. लोगों को मैंने देखा 35, 40, 45 में करियर बनाते हुए. नॉट लेट फॉर एनीथिंग. आज 18 साल का बच्चा सोच रहा हो लेट हो गया करियर बनाने में. मतलब वो सोसाइटी ने उसे सोचने पे मजबूर करा है. बिकॉज ही इज सीइंग 18-19 साल के बच्चों को दुबई घूमते हुए और ये सब करते हुए. उसे कुछ नहीं पता. ये सोशल मीडिया इज फेक. जस्ट फोकस ऑन योर करियर. हार्डवर्क करो. हम्बल रहो हमेशा. बी रिस्पेक्टफुल. कभी भी किसी से उल्टा मत बोलो. जस्ट बी हम्बल एंड रिस्पेक्टफुल. एंड और कुछ भी मंत्रा नहीं है. मैं इतने सारे सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठा हूँ, उठाऊँ, सबका सेम है. सबका सेम है. किसी ने मुझे कुछ और एडवाइस नहीं दी कि भाई यू शुड गो इनटू दिस, यू शुड. जस्ट बी हम्बल, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड. दिस इज इट. Awesome. एक दो क्वेश्चन और मेरे Yes, दिमाग yes, में आ गया. I'm 100%, gonna ask you. 100%. Tell me, who has been your inspiration as an artist? Number Yes. one. Yes. Number two, अभी तक किससे सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं जो you've met them and what have you spoken to them about? Okay. So अगर इंडिया लेवल पे देखें तो लॉ स्टोरीज यूज्ड टू बी माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन. लॉ स्टोरीज ये डुओ है, डीजे डुओ है, ऋषभ एंड प्रयाग सर का. तो दीज वर माय बिगेस्ट इंस्पिरेशंस. इनका ट्रैक है बॉम्बे ड्रीम्स करके जो कश्मीर के साथ आया हुआ है. तो सम पीपल प्रोनाउंस इट कश्मीर कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो. तो उनके साथ आया था. तो दोज वर माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन डीजे एंड उसमें. और उसी पाथ पे आई एम गोइंग कि दीज पीपल वर प्रोड्यूसर्स पहले, फिर डीजे बने, फिर दे ओपन देयर ओन अकेडमी विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अकेडमीज इन इंडिया. एंड सेम प्रोसेस पे आई एम गोइंग. एंड मुझे लगता है कि दीज आर नाइस पीपल. और अगर आर्टिस्ट की बात हो बड़े की मिलने की, टू बी ऑनेस्ट एवरी आर्टिस्ट इज बिग फॉर मी. मैं कभी भी किसी को, भले वो नंबर्स में मेरे से भी नीचे है ना, स्टिल ट्रीट देम इक्वली. भले किसी बड़े आर्टिस्ट से मैं हुआ. बड़े आर्टिस्टों में देखा. What I meant is कि who you looked up to, कि आप किसी को look up करते हो and then you've met them. तो ऐसा कोई किसी से मिले हो? फरहान अख्तर सर वाज वन ऑफ इट. तो फरहान अख्तर सर का आई गेस पूर्णिमा कॉलेज, इट वाज नॉट यूनिवर्सिटी, कॉलेज. उनका भी अगेन मेरे से पहले परफॉर्मेंस आई वाज क्लोजिंग द इवेंट. एंड तब मैंने थोड़ी सी कन्वर्सेशन भी हैड की रिगार्डिंग द फिटनेस एंड स्टफ. So I used to have crazy physique उस टाइम पे था. I went performing वही टी-शर्ट पहन के. He used to have crazy physique. He still has a crazy physique. तो ऐसे ही जिम वगैरह का थोड़ा डिस्कशन हुआ एंड सब हुआ. एंड I was very happy how humble he was. He was treating everybody nicely. He was shaking hands with everybody and सब. तो उस टाइम दिमाग में था कि यार बनना ऐसा ही है. किसी से कुछ ऐसा नहीं करना है कि भाई आप में फेम आ गया है, लोग आपके आसपास है, आप किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे. do it, so you can do Yes, it as well, 100%, of course. 100%. Where can people find you? Okay, so you can just go and search TrapperX official on Instagram. That is my official ID. And if you want to listen to my music, you can search TrapperX on Spotify, Apple Music, YouTube, everywhere. TRAPPERX. Trapper Yes. X. Awesome, Trapper X. Thank you for being here. Thank you for coming to the podcast. And I think मैंने अपनी म्यूजिक के बारे में जितनी भी questions थे, जितने भी doubts थे, you've cleared them. Thank you so so much. thank you so much for doing it. Thank And you so much. you have a great future. I can see that. I wish you all the best for Thank it. you so much for having me. Thank you so much. Cheers. Yeah. Thank you.
Fan favorite, they know it, I don't want it. Now this place is blurry. Now my Just building up this. in the aura, keep saying, do not disturb me. This place is blurry. My face is blurry. My aura screaming, you get hurt if you disturb me. You don't want the smoke.